बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत कुरान पाक कीजिए। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I wish to welcome Ms. Shakra Khurshid, Assistant Controller of Patent IPO Pakistan, for her visit at Sialkot Chamber of Commerce and Industry to conduct an awareness session regarding intellectual property rights and trademark and logo registration in Pakistan. I also wish to thank all of your kind participation and interest in the importance of today's session. At this occasion, I would like to share that intellectual property protection is critical to fostering innovation. Without protection of ideas, businesses and individuals would not reap the full benefit of their inventions and would focus less on research and development. I consider it important to mention that piracy, counterfeiting, and the theft of intellectual property assets pose a serious threat to all businesses. Exporters face unfair competition abroad, whereas buyers face legal and safety risks from the threats of counterfeit goods entering their supply chains. While it is difficult to determine the exact scope and extent of the problem, every indication is that copyright piracy, trademark counterfeiting, and patent infringement have become significant problem in the business community in general, including small businesses. Certainly, any small business that exports its IP protected products abroad or sources its product or part overseas must take into account the potential for rampant IP theft in many countries. I wish to introduce that participants regarding IPO Pakistan, which is an autonomous institution of the government of Pakistan and is concerned with copyright, trademarks, patents, and other general types of intellectual property regulations. It has been observed that Sialkot-based small businesses are at particular disadvantage regarding the intellectual property, as they lack the knowledge, expertise, or sources necessarily to get proper recognition as brand and also to prevent the theft of their ideas and products. The business community of Sialkot had worked for many years as supplier to many brands, but now it is the time to create and introduce world with our own brands. Many small businesses of Sialkot may not have overseas personnel and operations as brands, so they lack the need to be vigilant globally, and the theft of their IP can often go undetected. In addition, small businesses generally do not have the level of access or resources, such as specialized legal counsel that may be available to the larger companies. Because Sialkot is, I must tell you that Sialkot is a composition of small businesses. We have smaller companies. We are all SMEs sector. Considering above and recognizing the need of our SME members, the Sialkot Chamber, in collaboration with IPO Pakistan, has organized today's session, and we believe that the knowledge and the resources shared in this session would be helpful and small and medium businesses to learn more about intellectual property rights, trademark, logo registration, and to tackle IP protection enforcement more effectively. I once again thank Ms. Shakra Khurshid for her visit and request her to start the session. Thank you. Thank you very much. First of all, thank you very much for inviting me over here. My name is Shakira. मैं IPO में एज असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पैटेंट्स वर्क करती हूँ और मेरा ताल्लुक जो है वो IPO के रीजनल ऑफिस लाहौर से है। रिसेंटली मैं वहाँ पोस्टेड हूँ। आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क के बारे में है, लेकिन जो IPO है वो आपके ट्रेडमार्क, पैटेंट, डिजाइन और कॉपीराइट सबकी रजिस्ट्रेशन करता है। तो ओवरऑल ये IP के राइट्स हैं
ये वो राइट्स हैं जो आपकी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी से क्रिएट होते हैं। जैसे आप एक फिजिकल प्रॉपर्टी बाय करते हैं और आप जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इसी तरह से यू बाय अ कार, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसी तरह से जो आपकी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी है, आपने उसको जिस इदारे के पास रजिस्टर करवाना है वो है IPO पाकिस्तान। ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। वी आर करंटली वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और हमारा जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो ये है कि हम IPO का हेडक्वार्टर इज एट इस्लामाबाद। 3 रजिस्ट्रीज हैं हमारी कराची में, एक वन इज पेटेंट ऑफिस, ट्रेडमार्क ऑफिस है, कॉपीराइट ऑफिस है और एक हमारे 2 रीजनल ऑफिस हैं करंटली। एक IPO का रीजनल ऑफिस लाहौर है और ये जो है फुली फंक्शनल है। इसीलिए बहुत से पहले लोग मैं तकरीबन आज से कोरोना से पहले जो मेरा एक सेशन था उसमें भी हमने बात की कि अब आपको कराची जाने की जरूरत नहीं है। फुली फंक्शनल, फुल फ्लैग फंक्शनल जो ऑफिस है वो आपका लाहौर ऑफिस है। ना सिर्फ डील करता है आपके ट्रेडमार्क से, आपकी ट्रेडमार्क सर्च से लेके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट तक आपको यहाँ अवॉर्ड होता है। इवन आपकी ऑपोजिशन है, पार्टी लाहौर की है और दूसरी पार्टी आपकी कराची की है और आपका लॉयर भी इधर का है, तो फिर वो आप उनको अगर कराची ऑफिस में ये लिखें तो वो आपकी ऑपोजिशन की हियरिंग भी यहाँ होती है। रजिस्ट्रार साहब खुद तशरीफ लाते हैं, तो वो उनका है कि 3 या 4 महीने के बाद जिस तरह केसेस हो जाते हैं तो वो उस तरह से पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए पहले आपको ऑल द वे यू हैव टू गो टू कराची, तो वो अब वो चीज नहीं है। दूसरी बात कि अभी हम ट्रेडमार्क के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी पैटेंट की एप्लीकेशन हम रिसीव करते हैं IPO रीजनल ऑफिस लाहौर में, डिजाइन की आपकी एप्लीकेशन और इसी तरह से कॉपीराइट की भी जो है वो एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। लेकिन वी सेंड देम टू द कराची और सिर्फ जो है ट्रेडमार्क वो फुली यहाँ पे डील होती है और टू सम एक्सटेंट जो है वो पैटेंट की यहाँ पे डील होती है। इसके अलावा जो है हम रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रीज में भिजवाते हैं कराची। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। मैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसकी हाउ वी मैनेज इन पाकिस्तान, IP की टाइप्स क्या हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन एक्टिविटी, वी हैव सम स्टडीज। उससे पहले जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ह्यूमन जो इंटेलेक्ट की प्रॉपर्टी है हम उसको जो रजिस्टर करवाते हैं दैट इज वी कॉल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, वी कॉल देम एसेट्स। ऑब्वियसली व्हेन यू रजिस्टर यू मेक मनी फ्रॉम दैट। You have a brand, you have a patent on technical invention, industrial design, apparently how your the product look like. उसको टेक्निकल उससे कुछ नहीं करना होता। अगर मैं पैटेंट का और डिजाइन का आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताऊं तो जो मेरे हाथ में ये बॉटल है इसके अंदर जो टेक्निकल फीचर इन्वॉल्व है वो ये हो सकता है जो आप पैटेंट की शक्ल में रजिस्टर करवाएंगे। इट कुड बी द ग्रिपिंग मैकेनिज्म जो आपने यहाँ इन्वॉल्व किया। इट कुड बी कि आपने प्लास्टिक की कंपोजिशन ऐसी बनाई है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती। सपोज यू से कि ये यूवी रेजिस्टेंट है कंपोजिशन, तो इस तरह से जो आप टेक्निकल इसमें अपना पार्ट उसमें टेक्निकल आपका पोर्शन है वो आपकी पैटेंट के अंदर कवर होगा। इंडस्ट्रियल डिजाइन इज हाउ द बॉटल लुक लाइक, दिखती कैसी है सिर्फ नेकेड आई से, उसमें आपको टेक्निकल फीचर से लेना देना नहीं और ना ही आप क्लेम करते हैं। तो पैटेंट की एप्लीकेशन आप अलग फाइल करते हैं, डिजाइन की अलग फाइल करते हैं, एट ए टाइम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेंसी ये होती है कि आप अपनी एक प्रोडक्ट हमारे पास लेके आते हैं और आप कहते हैं कि जी मैंने ये काम किया है, इसके अंदर बॉटल नहीं बनाई है, तो हम कहते हैं कोई टेक्निकल फीचर इन्वॉल्व है, अगर है तो पैटेंट भी अप्लाई साथ में कर दें। हाँ, इस नाम से आप पानी बेचना चाहते हैं या बॉटल में कोई और चीज है, सपोज इट्स टोमेटो केचप, वो बेचना चाहते हैं तो ट्रेड नेम, ट्रेडमार्क जिसकी आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, तो आप ट्रेड नेम भी इस पे ले सकते हैं। बॉटल के डिजाइन के इंडस्ट्रियल डिजाइन ले सकते हैं। और अगर आपकी केचप की वैसे तो रेसिपीज नहीं आती पैटेंट में, लेकिन सपोज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग केचप, ठीक है ना, वो आपका एक नॉवल है, तो वो जो चीज है आपकी वो प्रोसेस जो है वो हम पैटेंट के अंदर कवर करेंगे। तो कॉपीराइट कुड बी द इलस्ट्रेशन ऑन दैट, कुड बी कि आपका जो ट्रेड नेम है उसके अंदर आर्टिस्टिक वर्क जो है वो कैटेगरी आपकी कॉपीराइट में चली जाएगी। तो ये हमारे सिंपल एक इलस्ट्रेशन है कि आपके जितने भी IP के राइट्स हैं, जो पैटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की हम बात करते हैं, वो सिंपल वे में ये चीज है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो राइट्स है ना जिसकी बात अभी की गई, आपको पता है GI जो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये भी हमने अप्रूव किया है।
प्लांट ब्रीडर्स का राइट भी, ये भी, इसका भी लॉ अप्रूव हो चुका है पाकिस्तान में। अब बासमती का जो केस है, ये बासमती रजिस्टर हो गया है SGI, क्योंकि टेक्समती और बासमती के नाम पे इंडिया ने हमसे जो है वो काफी पहले रजिस्टर करवा लिया। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि व्हाई वी नीड द GI बिल, जबकि ट्रेडमार्क के अंडर भी ये चीज कवर हो रही थी। नहीं, क्योंकि GI जो थी ना, उसके जो लॉ की स्पिरिट थी वो ये थी कि आपको जियोग्राफिकल बेस्ड होना था उस प्रोडक्ट को, और इसकी वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में एक लूजर थे कि हमारा टैग हमारी बासमती के ऊपर नहीं था। नाउ वी कैन पुट अ टैग ऑन इट, कि एक बाकायदा उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैग कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रिकग्नाइज किया है एज ए GI, और उसकी बहुत सारी फिर वो लंबी चौड़ी एक ना रेक्विजिट्स हैं कि किस तरह से आप उसकी एप्लीकेशन फाइल करते हैं। प्लांट ब्रीडर राइट भी स्टिल है, लेकिन इसके भी रूल्स वगैरह अंडर प्रोसेस है। तो आप देखिए कि IP ये स्टैटिक फील्ड नहीं है, ये वो है एवोल्यूशनरी, वो है कि जिस तरह से ह्यूमन क्रिएटिविटी है उसी तरह से इसकी फील्ड्स जो है ना वो डेवलप हो रही हैं। ये लॉज हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद हैं स्पेसिफिकली। और दूसरी बात कि ये हमारे ऑफिसेस हैं, मैंने आपको भी इनके बारे में बताया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो है होता क्या है, आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और इट शुड बी डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर्स, और ये डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन के अंदर आप ही के लिए गाइडलाइन है कि आप ऐसा मार्क सेलेक्ट करेंगे जो डिस्टिंक्ट हो, मिलता जुलता ना हो, सिमिलैरिटी ना हो, ठीक है। और सिमिलैरिटी ना हो, डिटो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इवन सिमिलर नहीं होना चाहिए, और कंफ्यूजिंगली सिमिलर नहीं होना चाहिए। जब एक एग्जामिनर ट्रेडमार्क का इसको देखता है, वो ये सारी चीजें देखता है। तो और दूसरी बात ये है कि डिसेप्टिव ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जैसे कैनोलिव के अंदर जो है वो मतलब इट डिपेंड्स कि उन्होंने उसके अंदर सिर्फ वो डाला हुआ है, लेकिन चले कुछ हद तक ये है कि ऑलिव उसके अंदर नहीं है, बल्कि एक दो और ऑयल्स भी हैं, और जिनके अंदर वो चीज मौजूद नहीं है, सिर्फ एक एसेंस मौजूद है, जिसको कहते हैं ना सिर्फ खुशबू मौजूद है, वो एक्चुअल नहीं है, एंड दे आर मार्केटिंग वो। लेकिन अगर रजिस्ट्रार ने कर भी दिया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि ये दिस इज द डिसेप्टिव मार्क, एक तो ये कि कंज्यूमर कोर्ट्स में भी आप जा सकती है, लेकिन दूसरा ये है कि अगर मार्क आपको डिसेप्टिव लगता है तो यू कैन गो टू द रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग रेवोकेशन, कि इसको कैंसिल कर दिया जाए। अगेन हाई कोर्ट भी ओपन है, और जो है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क के अंदर होता क्या है, आप एक वर्ड को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, कोई डिवाइस से मुराद ये है, जैसे लेपर्ड्स है तो लेपर्ड इज अ वर्ड, और उसके साथ वो जो बना हुआ है, लेपर्ड बना हुआ है इटसेल्फ, वो डिवाइस है। हमारी टर्मिनोलॉजी में हम उसको डिवाइस कहते हैं, ठीक है। ये जैसे वाटर बॉटल, आई कांट, आइसबर्ग, अच्छा ओके, इट्स आइसबर्ग, इट्स अ ट्रेड, ये वर्ड मार्क है आइसबर्ग, और इसके साथ ये जो दो ड्रॉपलेट से हैं, ये चीज जो है ना, दिस इज द डिवाइस। तो दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश योर मार्क फ्रॉम अदर्स, कि आप डिवाइस को जरूर इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। और आजकल तो बहुत सारे आपको वेब इस पे काम करने वाले मिल जाते हैं, पहले तो ये नहीं था। बड़ी कंपनीज जो थी वो जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करती थी बाकी मुल्कों की, तो उनकी एक स्टडी है पूरी कि नाइकी के टिक के लिए, वो स्वूश के लिए उन्होंने कितना वर्कआउट किया था, कितनी इसकी विड्थ, कितनी लेंथ और वो होनी चाहिए। तो वो उस चीज पे जो है हम लोग भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये IP का राइट है। ये बात ध्यान में रखें कि ट्रेडमार्क XYZ नहीं है। गुजरात में हर बंदे ने जो भी पंखा बनाया, उसने बस वो एक जैसे नाम चल रहे हैं, ठीक है। तो बजाय उसके कि हम ट्रेडमार्क को IP का राइट समझे, हमने XYZ जो अपना नाम रखा, हमने कहा चलो कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को दे दो। होता ये है कि अगर आपकी एक गुडविल, आप जैसे हबीब है, हबीब कुकिंग ऑयल है, हबीब देखा जाए तो एक बंदे का नाम है, पर्सनल नेम्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं है। मैं भी अपने मेरे अगर जो है, या आपकी फैमिली का नेम है, कोई सर नेम है, आप उसके नाम पे रख लेते हैं या पर्सनल नेम पे रख लेते हैं, तो दूसरे जो बिजनेस करने वाले उनके घर में भी हबीब होगा, शमा बनास्पति वो भी रख सकते हैं, दे आर फ्री टू यूज दैट। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको फिर एविडेंस देना होता है, जी ये हबीब जो है ना, मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ,
तो इस वजह से सरनेम पे आपको रजिस्ट्रार तो दे देता है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, बट स्टिल यू हैव अ वीक प्रोटेक्शन, क्योंकि मार्केट में और आने वाले हबीब के नाम से वो उसका स्टाइल चेंज करके और वो जो है वो कारोबार कर लेंगे। अगर दो के हमारे पास रजिस्टर नहीं करवाएंगे बट वो कहेंगे ये जी हमारा सरनेम हम अपने से कर रहे हैं, बेशक वो छोटी जगह पे कारोबार कर रहे हैं, तो यू आर इन अ वीक फुटिंग आफ्टर हैविंग द ट्रेडमार्क कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाएंगे तो मतलब किस चीज को बेस बना के जाएंगे। अब देखिए एफएफसी इज एन एग्जांपल ऑफ द वीक ट्रेडमार्क, उसके साथ केएफसी और बहुत सारी चीजें जो है वो अटैच करके खोल दी गई, क्योंकि एफसी जेनेरिक वर्ड था, फ्राइड चिक का ना। लेकिन मैकडोनल्ड देखिए आदमी का नाम है, वैसे चूंकि हमारे यहाँ ये नाम नहीं है तो हमने मैकडोनल्ड की बहुत कम इंफ्रिंजमेंट देखी कि किसी ने इसको चेंज करके अपना बना दिया हो। तो जो वीक ट्रेडमार्क होते हैं दो, वो आपके प्रायर यूज की बेस पे, एविडेंसेस की बेस पे वो रजिस्टर तो हो जाते हैं, और जेनेरिक नेमों को वो नीचे भी लिख देते हैं रजिस्ट्रार के ही डिस्क्लेमर ये है कि आप इस चीज को क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें जो आपने वर्ड लिखा है तो इस चीज को आप क्लेम नहीं करेंगे, बाकी पे आपका राइट है। तो देखा जाए तो डिस्क्लेमर के साथ जो आपको ट्रेडमार्क मिलता है ना वो वीक ट्रेडमार्क, आपका लॉयर आपको नहीं ये बात बताएगा, वो कहेगा जी आपका रजिस्टर हो गया है, लेकिन एक्चुअली जब रजिस्ट्रार और ट्रेडमार्क उसको एक्सेप्ट करते हैं तब वो उसको बताते हैं कि जी आपकी कंसेंट है कि ये आपको डिस्क्लेमर के साथ दिया जा रहा है। तो अगर वो, ये तो अब लॉयर की ड्यूटी है कि वो ओनर को भी बताए कि इसमें डिस्क्लेमर इज देयर, इस पे आपको एक्सक्लूसिव राइट नहीं दिए जा रहे, जो कि ट्रेडमार्क की स्पिरिट है कि एक्सक्लूसिव राइट है। हम कहते हैं ना, इसीलिए लोग सवाल करते हैं ना जी, आप तो कहते हैं नो वन कैन यूज इट, मेक इट, ऑफर फॉर सेल, कोई यूज ही नहीं कर सकता मेरी इजाजत के बिना, वो तो उसने भी ले लिया उसने भी ले लिया, तो वो एक्चुअली डिस्क्लेमर के साथ होते हैं। आपका बताते हैं खुद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको बताता है कि डिस्क्लेमर इज देयर, तो उस सर्टिफिकेट को जरूर देखें कि आखिर आपको राइट किस पे दिया गया है। लेबल, टिकट, लोगो, नेम है, सिग्नेचर, इवन आपके जैसे जे डॉट है, लेटर्स एंड न्यूमरल्स, इन सब के ऊपर है, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड कि हमने स्ट्रॉन्ग मार्क कैसे बनाना है, ठीक है। वो फिर लिटिगेशन में जाता है, आपकी प्रोसेसिंग भी बहुत लेट होती है अगर आपने उसमें इंटेलेक्चुअल या कहना चाहिए क्रिएटिविटी का एलिमेंट नहीं दाखिल किया बनाते वक्त, डिजाइन करते वक्त। अच्छा, बहुत सारे ये लोग पूछते हैं कि हमने तो वो, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं हमें अभी पता चला तो हमने अपने सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी ये मार्क करवा लिया, अब हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए ये वो काम है जो पहले सोचने का है, आपने बिजनेस स्टार्ट करना है ना, थिंक बिफोर दैट कि मैंने ट्रेडमार्क लेना है, ठीक है। और इवन आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के 5 साल पहले इसको लेके रख सकते हैं। हो सकता है आपका आप फिर इरादा बदल जाए, आपकी लाइन बदल जाए, आपको मार्केट पोटेंशियल कहीं और नजर आए तो आप ना यूज करें इसको, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लाइन क्लियर है तो फिर आप 5 साल पहले भी अगर लेके रख लें तो और आप ना यूज करें, चले पहले 5 साल ना भी लेके रखने वाली बात हम करें, यानी 5 साल तक लॉ कहता है आप ना भी यूज करें तो आपको कोई नहीं छेड़ेगा। कोई अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ जाता है ना कि ये तो ट्रेडमार्क यूज ही नहीं कर रहे, अगर आपके विद इन 5 ईयर्स है ना तो कोर्ट ऑफ लॉ भी कहेगी नहीं इसका राइट है, अगर मार्केट में इसकी प्रोडक्ट इवन मौजूद भी नहीं है। लेकिन ये कि 5 साल के बाद अगर आप मार्केट में नहीं गए ना तो फिर एनीवन कैन यूज इट, दूसरों को तो इस्तेमाल करने देना। अब हमने बिजनेस को तो नहीं रोकना इस स्पेस पे, क्योंकि इसका मोनोपोली राइट हो गया, एक्सक्लूसिव राइट हो गया, ये ट्रेडमार्क को और ना लेके जाए। तो इस जो लॉ है वो स्पेस भी देता है दूसरों को, आपको एक्सक्लूसिव राइट देने के साथ साथ। अच्छा, स्टेप्स है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। मैं हमेशा ये बताती हूँ कि ऑलवेज सिलेक्ट अ गुड ट्रेडमार्क। पहले तो आप सिलेक्ट करें ट्रेडमार्क अच्छा, फिर आप एप्लीकेशन जो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है www.ipo.gov.pk, उसका ट्रेडमार्क का बुलेट है, उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में टीएम फी एंड फॉर्म्स के नाम से फॉर्म्स हैं, वो सारी लिस्ट निकलती है, तो TM1 आप उससे लें और 3000 का पे ऑर्डर बनता है डायरेक्टर जनरल IPO पाकिस्तान के नाम। उसके बाद आप TM1 को डाउनलोड करने के बाद अपनी क्लासिफाई करें कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ है, उसको फिल करें, और फिर ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्ड करना है ऑफिस क्वेरीज को, नोटिस को प्रॉपर्ली जब आपने एक दफा सबमिट करवा दिया। अब ये थोड़ी सी एकेडमिक हिसाब से ना हम कहते हैं ना कि लॉ क्या कहता है, बेसिकली आपकी सबसे ज्यादा जो मेहनत है ना वो अच्छा ट्रेडमार्क सिलेक्ट करने पे होनी चाहिए। बाकी तो प्रोसीजर है, हमारी डायरेक्ट एक्सेप्टेंस भी है, ये नहीं कि आपको ऑब्जेक्शन भेजे जाएंगे, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस भी है उन मार्क के लिए जो कि
जो कि ये क्वालिटीज रखते हैं, इजी टू स्पीक एंड स्पेल है, अपीलिंग एंड इजी टू रिमेंबर है। इसके अलावा आप देखिए इन्वेंटेड एंड कॉइन वर्ड्स की तरफ जरूर जाएं, और एप्पल को देख लें अगर, या फिर जो डिस्टिंक्टनेस का पहलू है इन सब के अंदर है। द थिंग इज, जैसे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारी कैटेगरी में हम इसको फैंसीफुल नेम कहते हैं। एप्पल है तो ये आर्बिट्रेरी मार्क है। आर्बिट्रेरी का मार्क का मतलब ये कि ये जेनेरिक नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद द कंप्यूटर। एप्पल वर्ड को कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, एक आर्बिट्रेरी वर्ड है और हमने कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई कर दिया। अगर देखा जाए HP लेटर्स इतने मैटर नहीं करते और इतने स्ट्रॉन्ग मार्क होते भी नहीं है HP जैसे है, लेकिन ऐसे मार्क्स को अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी मतलब अपनी जिसको कहने वर्थ प्रूव करने के लिए बहुत टाइम लगता है। वो सिर्फ ट्रेडमार्क की बिना पे नहीं उठते, दे हैव टू स्ट्रगल इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी एज वेल, कि अच्छा जी हम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब HP भी एक मतलब नॉन ट्रेडमार्क है, लेकिन देखा जाए तो HP इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, तो दो लेटर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये वो मार्क्स है जो स्ट्रगल करते हैं, दे हैव टू वर्क इन द मार्केट, कि अपनी एक पोजीशन, एक अपनी शनाख्त बनाते हैं। कुछ सजेस्टिव मार्क्स होते हैं, जैसे सनी आप लीडर्स के लिए रखते हैं, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि कुछ मार्क्स सजेस्टिव होते हैं। वो सजेस्टिव मार्क की भी एक क्वालिटी है कि आप ये भी पहलू मद्देनजर रखते हैं कि हाउ टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर को देखते ही ये पता चल जाए कि ये मार्क जो है फॉर व्हाट। अगर आपने कोई नई चेन खोली है, फूड की कोई चेन है, तो आप पिज्जा तो नीचे लिखेंगे ही उसके, क्योंकि पिज्जा लिखा हुआ आपके ट्रेडमार्क का हिस्सा नहीं होगा, दो इट्स अ पार्ट ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। लेकिन ये है कि उस सिलेक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क भी कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे ये पता चले कि इट्स मतलब कोई फास्ट फूड से रेलेवेंट चीज है। तो ये वो चीज है जिसपे आपको यू हैव टू वर्क। अच्छा, सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स, ऑब्वियसली ये भी आपको एक चीज देखनी है। अच्छा, डोंट गो फॉर द ट्रेडमार्क, ये मार्क आपको सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करने जो क्या है दूसरों से डिस्टिंक्ट नहीं है, बिल्कुल मिलते जुलते से नाम है, सिमिलैरिटी है उन नामों के अंदर, ठीक है, या वो जैसे लेटर्स हैं, न्यूमरल्स हैं, कॉमन सर नेम है, बजाते खुद नेम है, या फिर सिर्फ वर्ड है या पिक्चर है। कॉम्बिनेशन इज अ गुड थिंग, कि वर्ड और पिक्चर को, जिसको हम डिवाइस अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, वो कॉम्बिनेशन इज अ गुड ट्रेडमार्क, लेकिन अलग अलग ना दें। क्यों नहीं दें? क्योंकि ये इजीली कॉपी हो सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त ये नहीं ख्याल रखना कि सिर्फ जी मेरे पास सर्टिफिकेट है, आपने देखना कितना वैलिड सर्टिफिकेट इन द मार्केट है, मैं अपनी मार्केट में अपनी पोजीशन को कैसे स्ट्रांग बनाता हूं इस मार्क की वजह से, फिर आपको इन्फ्रिंजर का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फ्रिंजमेंट से बचने के लिए सबसे पहले ऑलवेज सेलेक्ट अ गुड ट्रेडमार्क। अच्छा, ये फिर है आपकी कुछ जैसे ये मार्क्स हैं, अब ये मार्क्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जैसे आप चेयर कह दें तो ये आपको रखने भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी नॉलेज में नहीं है आप रख देते हैं। चेयर सेलिंग इस तरह का कुछ कर देते हैं, तो ये जेनेरिक वर्ड है इसके ऊपर, और सेलिंग भी एक जेनेरिक वर्ड है, और ये होगा कि वो आप जमा तो करवा देंगे लेकिन वो आपको फिर ऑब्जेक्शन लगा देंगे कि जी ये जेनेरिक नेम है। लेकिन चूंकि अगर आप मतलब ये एविडेंस दे देते हैं कि जी हम तो बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, हमें तो कोई 20-25 साल हो गए इस बिजनेस में, हमारी एक पहचान है, तो उस प्रेसिडेंट की बेस पे जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क है वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। बट अगेन डिस्क्लेमर आपके सर्टिफिकेट पे होगा कि जनाबे वाला ये जेनेरिक है, चेयर पे और सेलिंग पे आपको राइट एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव जब राइट नहीं होती तो इसका क्या मतलब होता है, कोई और भी आया रजिस्ट्रार के पास यही चीज जरा मुख्तलिफ उसमें लेके या किसी और क्लास में लेके, तो वो इजीली इसको दे देंगे। जैसे स्वीट आप चॉकलेट के लिए रख लें तो ये डिस्क्रिप्टिव है, तो नाम डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर स्वीट और चॉकलेट, इवन स्वीट इज नॉट, मतलब आप उसको वो भी नहीं, उस कैटेगरी में भी नहीं शामिल करते जो मैंने पहले सजेस्टिव मार्क में बताया था। दिस इज द डिटो वन कि चॉकलेट और स्वीट है, कभी नमकीन तो किसी ने खाई, और फिर स्वीट और फिर आप नीचे जा रहे चॉकलेट भी तो लिखेंगे ना अपने पूरे उसको जमा करवाते वक्त है क्या। अच्छा, कोई डिसेप्टिव, स्कैंडलस, ऑफेंसिव मैटर है, इस तरह का भी जो है वो नहीं होता। जैसे आपने और वूला या फिर प्योर वूल यूज किया, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है वो 100% सिंथेटिक मटेरियल से है, दो इन फाइलिंग द ट्रेडमार्क वो इस चीज को चेक नहीं करते कि आया जी आपके पास ये जो प्योर वूल है ये आपने किस चीज का रखा है,
मतलब ट्रेडमार्क, वो तो आपकी लाइन ऑफ बिजनेस का तो उनको पता है कि ये है, लेकिन आप ये है कि आप वेदर इसको अपनी प्रोडक्ट में यूज भी कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन इन्फ्रिंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेवोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू आर गिविंग द रूम टू अदर्स के आके हमारा रिवोक करते हैं, ठीक है। फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ में और रजिस्ट्रार के पास, दोनों के पास ये राइट है कि इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो इसको रिवोक कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। अवार्ड जो कि सेम है, ये सिमिलर है, वो तो बिल्कुल नहीं। तो ये वो चीजें जो आपने नहीं करनी है अपने मार्क को सिलेक्ट करते हुए। TM1 हमारा फॉर्म है और 3000, लेकिन एक और बात जो इसके अंदर है वो ये है कि हम पर क्लास देते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो है जी, हमारी क्लासेस जो है ना वो 45 क्लासेस हैं। 1 से लेके 34 तक जो है वो गुड्स के में कैटेगरी में आती हैं, और जो 11 क्लासेस हैं अगली वो आती हैं सर्विसेज की कैटेगरी में। तो क्लास मैटर करती है आपको, और दुनिया भर में है, कहीं और भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको पर क्लास पर मार्क ही आप करते हैं। कुछ कंट्रीज में डिफरेंट भी है, लेकिन मोस्टली कंट्रीज में यही बात है। अच्छा, फिर आपको क्लासिफिकेशन जब आप करते हैं तो ये वही बात, और ये नीस क्लासिफिकेशन है, NICE, ये हमारी उसके ऊपर मौजूद है वेबसाइट के ऊपर। और इसमें ये है कि आप जब भी क्लास सिलेक्ट करें तो नीस क्लासिफिकेशन की समरी पहले देखें, और समरी के बाद एक डिटेल दी हुई है, उस डिटेल को जरूर चेक करें अपनी गुड्स को सिलेक्ट करने के लिए कि कौन कौन सी गुड्स हैं जो मेरी उसमें आती है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है ट्रेडमार्क का, कि आप जब हमारे पास फाइल करते हैं एप्लीकेशन और उसकी एग्जामिनेशन होती है, आपको नोटिस भिजवाया जाता है, और उसके बाद जो है अगर आपका ट्रेडमार्क जो है ना हमारे हिसाब से सारा क्राइटेरिया मीट करता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करके हम फिर पब्लिश करते हैं ट्रेडमार्क जर्नल में, और ये जर्नल जो है ना हमारा अब ई-जर्नल, ये वेबसाइट के ऊपर ही आता है। तो आप बीइंग मतलब एक बिजनेस कम्युनिटी, आप लोगों की ये एक साइट होनी चाहिए, उसके अंदर होती है ना हमारी फेवरेट साइट्स होती हैं, हम बुक मार्क में उनको साइट्स को रख लेते हैं। तो IPO की साइट को आप अपने बुक मार्क में रखें, बल्कि ट्रेडमार्क के उसमें कि जब जहां से ई-जर्नल खुलता है उसको, और कीप एन आई ऑन इट कि आपके ट्रेडमार्क को तो कोई इन्फ्रिंज नहीं कर रहा। दुनिया भर में अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको इसी तरह एक्सरसाइज ऐसे ही लोग करवाते हैं। ये नहीं है कि US की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो खुद आती हैं ओनर के पास के आपको पता है आपका मार्क पे इन्फ्रिंज हो रहा है। एप्पल को ये नहीं करना, उसकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एप्पल के पास जाके ये नहीं करना होता, ठीक है। एप्पल खुद अपनी इस विजिलेंट रहता है, ट्रेडमार्क लेके सोना नहीं है, ठीक है ना। ऐसे जैसे हम अपनी बाकी प्रॉपर्टी को देखते हैं ना, कि आपको पता है ना कि अगर आपने प्लॉट खरीदा, उसकी बाउंड्री कोई और, या उस जगह से, उसी आपकी जगह से कोई और जो है वो थोड़ी वॉल आपकी साइड पे कर ले, तो आपको आपके नॉलेज में आती है ना ये बात। इसी तरह से ये चीज भी आपके लिए इतनी मैटर करनी चाहिए। एक केस स्टडी है कि गूगल ने इस बात पे था उनका कि GOOGLE इसको कोई ट्रेडमार्क को जेनेरिक ना कर दे। जेनेरिक कैसे नाम हो जाता है आपको पता है? निम्को, ये निम्को एक ट्रेडमार्क था, लेकिन लोगों ने निम्को कर वो जेनेरिक कर दिया। अब हमें लगता ही नहीं कि निम्को ट्रेडमार्क था, वो जेनेरिक हो गया। अब हम उस प्रोडक्ट को निम्को कहते हैं कि ये जो दाल सी इस तरह करके होती है, मतलब नमकीन वाली, या इस तरह मिक्स सा होता है, यही होती है निम्को। तो निम्को वाज अ ट्रेडमार्क। तो गूगल जो है वो इतना एग्जर्ट करता है अपनी इस चीज को कि अगर किसी भी, अब हम तो एक मतलब लोकल लेवल पे बात कर रहे हैं, अगर हम किसी इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, दे स्टॉप अस कि गूगल करें, डू द गूगल, ठीक है। वो कहते हैं ये यूज ना करें। अब हमारा हो गया ना कि गूगल कर लो, हम मोस्टली हम ये बोलते हैं। अगर आप किसी इस तरह वाली चीज पे जो उनकी एक्सेस में हो और हम गूगल करना हो, तो वो आपको डायरेक्ट लेटर लिखते हैं। वो एक होता है ना, एक स्टेप है कि सीज एंड डिसिस्ट, कि आप पहले रुक जाइए। अपने इन्फ्रिंजर को पहले, सबसे पहला काम ये होता है कि आपने जो उसको लिख के रोकने की कोशिश की कि रुक जाओ, ये मेरा वैलिड ट्रेडमार्क है, फिर आप कोर्ट में जाते हैं। मतलब ये एक चीज की एक वो है ना कि आपने हाथ पांव से उसको रोकने की कोशिश की कि देखो ये मत करो, तो वो जो सीज एंड डिसिस्ट लेटर है वो फौरन भिजवाते हैं अपने अटर्नी के थ्रू कि ये देखें जी आप इस चीज को, इन चीजें जो है ना ये हमारे उसके पर्व में आती है, अदरवाइज विल गो टू द कोर्ट, अगर आपने इस चीज को ना स्टॉप किया।
अपनी पब्लिकेशन में, अपनी एडवर्टाइजमेंट में या किसी तरह से भी। तो वो हर तरह से ये चाहते हैं कि एग्जैक्ट जो है ना, जैसे इंडिया ने भी उनकी वो गूगली के नाम से और इस तरह से थी, तो दे स्टॉप्ड इट। अब आप देखेंगे तो आपको वो चीज नजर नहीं आती। तो ये है इन्फोर्समेंट कि सिर्फ आपकी एजेंसीज ने तब इन्वॉल्व होना है जब आप खुद विजिलेंट है। दिस इज यू के आपने इन्फॉर्म करना है। अच्छा, फिर हमारी ऑपोजिशन की प्रोसीडिंग तब स्टार्ट होती है जब हमने तो दे दिया आपको मार्क, ठीक है, उसके पब्लिश भी हो गया, बट स्टिल अगर कोई और पार्टी अपोज करना चाहती है तो उसके पास जो है ना 2 महीने का और फिर एक्सटेंशन भी है 2 और महीनों की, यानी आप अगर देखें तो 4 महीने है, उसके अंदर वो अपोजिशन फाइल कर सकती है। ठीक है, कि ये जो चीज है ये हमसे कंट्राडिक्टरी है, ये हमारे वो है। अच्छा, बहुत से तो आपके लॉयर्स भी ये काम कर रहे होते हैं कि अगर उन्होंने एक दफा आपको ट्रेडमार्क ले दिया है और आपने उनको ये ड्यूटी सौंप दी है तो दे आर मतलब ऑन देयर ड्यूटी के लिए आप देखें कि आपका मार्क जो है ना वो इन्फ्रिंज तो नहीं हो रहा, आपको कहीं ऑपोजिशन फाइल करनी है तो वो दे कैन गाइड यू, लेकिन अपने तौर पे भी कीप वॉचिंग ई जर्नल। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जब ऑपोजिशन अगर तो पब्लिकेशन हुई आपकी, अगर हमारे पास कोई ऑपोजिशन नहीं आई, वी विल गिव यू द सर्टिफिकेट। ठीक है, एक उसकी वो सीलिंग फी होती है कि जी ये डिमांड नोट उसको कहते हैं कि डिमांड नोट आपने जमा करवा दिया, उसकी फी दे दी है, तो अब आपकी जो है ये 10 साल के लिए आगे भी रजिस्टर हो गया। वैसे तो ये फॉर एवर है, लेकिन जो इनिशियली जो आपकी प्रोटेक्शन है वो 10 साल के लिए, फिर आप रिन्यू करवाते हैं फिर 10 साल के लिए, एंड इट कीप्स ऑन। ठीक है, जब तक आप इसको ताहयात रखना चाहें, उसके बाद भी जब तक उसकी रिन्यूअल जमा होती रहेगी वो अलाइव रहेगा। अच्छा, फिर अगर ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं तो वो फिर एक पूरा उसका सिलसिला है। जाहिर है उससे बचने के लिए कि आपकी ऑपोजिशन ना आए, इट्स गुड कि आप अच्छा ट्रेडमार्क सेलेक्ट करें। अच्छा, फिर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज वन प्रोसेस, आप हर 10 साल के बाद करवाते हैं। और रेवोकेशन और कैंसिलेशन है कि स्टिल आपका रजिस्टर है, लेकिन जो मैंने पहले बातें बताई उनकी बेस पे ये रिवोक भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की ओवरऑल इंफॉर्मेशन हमने इसके बारे में पहले ही बात कर ली। इसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जी 3000 के, वैसे पहले तो मैंने जुबानी बता दिया, लेकिन स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि जी आपने किसी भी बैंक से पे ऑर्डर बनवाना है DGITO पाकिस्तान के नाम। तो अच्छा, इसके अलावा हमारी ऑनलाइन फाइलिंग भी है। आप सिर्फ ट्रेडमार्क में, कॉपीराइट या दूसरे में नहीं है, तो कॉपी उसके अंदर है। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां पे जो ऑनलाइन फाइलिंग है वहां पे क्लिक करें, तो आपको पहले आपको IPO की साइट पे रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है, जब आप वो रजिस्टर हो जाते हैं फिर आपको आपकी जो सेल नंबर आप देते हैं उस पे एक पिन कोड जाता है, तो पिन कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू फिर आप फर्दर जो है अपना फॉर्म TM1 की भी गिवन इंफॉर्मेशन आप डालते चले जाते हैं, वो TM1 ऑटोमेटिकली जो है ना आपका फिर सबमिट हो जाता है। अच्छा, ये बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, इससे तो हमें बिल्कुल भी जो है वो मतलब हम किनारा कशी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इट्स अ प्राइमा फेशी एविडेंस कि आपकी प्रोप्राइटरशिप का, तो ट्रेडमार्क में जो यूजर है उसको भी वेटेज दिया जाता है। कोर्ट ऑफ लॉ कहती है कि जी अच्छा, आप अगर किसी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया लेकिन XYZ है वो प्राइम यूजर है, उनको पता ही नहीं था, नॉलेज में नहीं था कि ट्रेडमार्क भी रजिस्टर होता है। ठीक है, और वो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में प्राइम यूजर चला जाता है कि जी यूज तो मैं कर रहा था, ट्रेडमार्क तो मेरा था, इसने जाके रजिस्टर करवा दिया, तो फिर कोर्ट एविडेंसेस देखेगी कि कौन जो है वो प्राइम यूजर था। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द जज कि वो कहे कि अगर मैलाफाइड इंटेंशन से किसी ने नहीं करवाया ट्रेडमार्क रजिस्टर, उसको भी पता नहीं था, करवाने वाले को भी, तो वो इट डिपेंड्स अपॉन द जज कि वो अब इस चीज को देखे कि प्राइम यूजर को भी राइट है, ये नहीं कि उसका बिजनेस बंद करवा दिया जाए, आपको भी राइट है प्राइम यूजर को कि आप भी इसको इस ट्रेडमार्क को यूज करते रहें, और जो जिसने ले लिया है सर्टिफिकेट ऑब्वियसली उसका तो राइट है ही, लेकिन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। ट्राइब्यूनल में मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि दे, और हाई कोर्ट में भी, दे गिव द वेटेज टू द सर्टिफिकेट होल्डर, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे। These are some examples ट्रेड और सर्विस मार्क की। जैसे मैकडोनल्ड आप देखिए, ये सर्विस मार्क कैटेगरी में आता है, और जितनी भी हमारी होटल चेन्स हैं या हमारी एक की सर्विसेज है, ये डेवू सर्विस है, ये सारी सर्विसेज में। अच्छा, ये कुछ है जैसे हम कहते हैं ना ट्रेडमार्क 7 अप है, ओरिजिनल गुड तो बेवरेजेस में थी लेकिन किसी ने कैंडीज बना ली ना, तो ये जो है ये इंफ्रिंजमेंट की उसमें आता है। बाटा शू में था लेकिन किसी ने बिल्कुल थ्रेड्स बना दिए।
अब आप अगर सारी चीजों में देखें तो हम कहते हैं ना कि काउंटर शुड बी डिफरेंट, क्लास डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। सपोज इसमें से अगर हम सबसे मास भी, वैसे चॉकलेट इतनी वो नहीं है जिस तरह से बाकी चॉकलेट्स वो है ना मशहूर मारूफ है, नोन है, जिसको हम अपनी कैटेगरी वेल नोन कहते हैं, तो मास चॉकलेट इतनी नहीं है। लेकिन चॉकलेट अगर किसी ने मास चॉकलेट पे लिया है और वही ड्रिंक्स पे भी ले लेता है मास का ही नाम लिख के ना, तो सिमिलैरिटी, कंफ्यूजिंगली सिमिलर, और क्लास भी अगर उसकी वही बनती है, काउंटर भी वही बनता है, यानी चॉकलेट और ड्रिंक्स एक ही काउंटर पे बिकती हैं, तो वो फिर नहीं ले सकेगा। लेकिन अगर मास को थोड़ा वो चेंज करके और ऑल टुगेदर डिफरेंट काउंटर की चीजें, फॉर एक्सम्पल सिलाई मशीन पे ले लेता है, वो चॉकलेट है वो सिलाई मशीन, फिर वो ले सकता है। लेकिन वेल नोन ट्रेडमार्क्स को ये इस्तेशना हासिल है कि वो आप बिल्कुल छोटी मोटी एक्स वाई चीज पे नहीं ले सकते। जैसे सपोज करें तो शीबा है, अब रख तो दिया उन्होंने भी कि वैसे तो वो टीवी के लिए बेसिकली था और बाकी भी उनके अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। लेकिन अगर किसी ने फर्ज करें तो शीबा आप क्या कहना चाहिए कि ऐसी चीज पे रख लिया जो कि चले फूड का काउंटर है, तो शीबा किसी फूड के अब तो वैसे हम हर जगह हर नामों को मिक्स कर देते हैं ना, तो शीबा हमने किसी फूड के आइटम के लिए रख दिया, तो यस ही कैन कर सकता है। लेकिन अगर तोशिबा इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क कि ये जी वेल नोन मार्क है, तो फिर नहीं रख सकता, ठीक है, वरना उसको दे दिया जाएगा अगर वो अप्लाई करेगा किसी भी फूड आइटम के लिए। तो ये वाली जो इंफ्रिंजिंग मार्क्स इसलिए आ रहे हैं कि काउंटर इज द सेम। 7 अप में बेवरेजेस और कैंडीज जो हैं वो मतलब एक ही उसमें फूड आइटम्स में आती हैं। बाटा में शू और थ्रेड, मैकलीन में देखें तो टूथपेस्ट या ब्रशेस की बात करें तो ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं ब्रशेस का नाम रख के मैकलीन के, वो कह रहे हैं कि ये टूथपेस्ट उनकी है तो ब्रशेस भी अब वो बनाना शुरू हो गए। तो इस तरह वाली जो है ना ये इंफ्रिंजमेंट में आती है, दे कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ के, और हमारे पास भी कि इस क्लास में हम सेम काउंटर की चीजों को नहीं दें। अच्छा, ये मार्क्स कंफ्यूजिंगली सिमिलर हैं, जैसे कोलगेट है तो ट्रिंगेट है और कारपोल, केपोल। अच्छा, एक बिल्कुल मैंने देखा ये जो हमारा मॉस्पिल होता है, मॉस्पिल बिल्कुल डिट्टो मार्केट में मौजूद है मॉस्किल के नाम से। अब मॉस्पिल मॉस्किल, तो नाम की जो शनाख्त है वो ये भी है कि फोनेटिकली भी सिमिलर नहीं होना चाहिए, ना देखने में सिमिलर हो, जो हम कहते हैं ना सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो उसका जो क्राइटेरिया वो ये है कि देखने में भी सिमिलर ना हो, यानी मुझे कंफ्यूज ना करे और कंज्यूमर को कंफ्यूज ना करे। स्पिरिट तो ये है ना कि कंज्यूमर ना आपका जो है ना वो कंफ्यूज हो, और इसी तरह से वो बोलने में भी वैसी उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होनी चाहिए। तो मॉस्किल मॉस्किल इज द सेम, तो वो ये चीज जो है इसको ओवरकम करना चाहिए कि ना हो आपके कंफ्यूजिंग सिमिलर मार्क्स। अगेन सम फेमस ट्रेडमार्क्स हैं, पाकिस्तान के हैं, तो मैंने जरा ओवरऑल दूसरे वाले लिए थे। ये हमारे अपने मार्क्स हैं ना। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं काउंटर फीटिंग की, जैसे आप कहते हैं कैंडी और कैंडिया कोई रख ले, तो ये वो चीजें जो FIA के पास भी जाती हैं कि जी ये कंफ्यूजिंगली सिमिलर मार्क है। और FIA जो है हाँ एग्जैक्टली वो कॉपीराइट को करता है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ जो मार्क्स हैं वो कॉपीराइट की मद में भी जो है वो किस तरह से वो हैं। जैसे ये, अच्छा ये केस लॉ है जिसमें जो हमारी एक कंफ्यूजन है ना कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आपने ट्रेडमार्क ले लिया तो कॉपीराइट भी जरूरी है। ट्रेडमार्क आपने ले लिया, कॉपीराइट जरूर लें, जरूरी नहीं है, लेकिन कब जरूरी है जब आपके ट्रेडमार्क के अंदर आर्टिस्टिक वर्क शामिल, क्योंकि ट्रेडमार्क ट्रेड में यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है, उसको कॉपीराइट से लेना देना नहीं है। हम आपको रिकमेंड नहीं करते कि ट्रेडमार्क है, आपका लॉयर जरूर आपको कहेगा कि ट्रेडमार्क है, लिया है ना तो जरूर कॉपीराइट भी लेंगे, लेकिन कॉपीराइट सिर्फ आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपके ट्रेडमार्क में आर्टिस्टिक वर्क मौजूद है जो कि आप शामिल करें ताकि आप दो प्रोटेक्शन ले सके ना दोनों साइड से, वो मैंने बताया ना आपको कॉम्बिनेशन यूज करें, डिवाइस वर्ड भी और डिवाइस भी यूज करें उसको आइडियल बनाने के लिए, ठीक है ना। अब ये तो एक बहुत सिंपल सा मार्क है ना कि इसके अंदर 2 ड्रॉप्स हैं, तो लेकिन अगर आप डिफरेंट किस्म का यूज करें, कोई इनोवेटिव यूज करें, कॉम्बिनेशन यूज करें, तो फिर आप जरूर उसके आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर ट्रेडमार्क दें। अच्छा, ये अब केस लॉ है, कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि अगर आपका कोई भी जो कॉपीराइट मटेरियल है, ठीक है, ट्रेडमार्क एक किसी ओनर का था
ठीक है, दूसरे ने उसी ट्रेडमार्क का जो आर्टिस्टिक वर्क था वो कॉपीराइट करवा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। अब हम भी इस चीज को फॉलो करते हैं इस जजमेंट के बाद। पहले ये था कि हाँ, अगर ये पहले बहुत इंफ्रिंजमेंट के इस तरह के केसेस आए कि एक का आपका ट्रेडमार्क है, आप इन जा रहे हैं सियालकोट में, दूसरी पार्टी ने क्या किया, उठा के वो कॉपीराइट करवा दिया और फिर वो अथॉरिटी के पास चली गई, एफआईए के पास, कि आप जो है इस पे एक्शन ले लें, और आपको पीटते रह जाते हैं, मैं ट्रेडमार्क ओनर हूँ, मैं ट्रेडमार्क ओनर हूँ। तो अब इस केस लॉ के बाद एक लिंकेज डेवलप हो गया है कि जो ट्रेडमार्क ओनर है बेसिकली उसका वो कॉपीराइट है, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। अगर कोई और आएगा हमारे पास आपके ट्रेडमार्क का आर्टिस्टिक वर्क लेके, तो हम कहेंगे कि आप ओनर हैं, अगर आप हैं तो आप हमें ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट ला दें, ठीक है ना। वो लाएगा सर्टिफिकेट तो ही उसका कॉपीराइट होगा, वरना हमारी तरफ से क्रॉस है, उसको अवार्ड नहीं होता। अब ये चीज जो है ना वो इंफ्रिंजमेंट वाली, और वो जो एक केओस सी डेवलप हुई थी ना लोगों में कि वो ले गया। अब ये इसके बाद देखिए ये 2003 में जजमेंट आई है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होते काफी टाइम लगा। ये अभी रिसेंटली 4-5 सालों में इस चीज पे स्ट्रिक्टनेस आई है कि अब हम कॉपीराइट को देते हुए जिसने आर्टिस्टिक वर्क में अप्लाई किया, हम चेक करते हैं कि ट्रेडमार्क के बिना तुम्हें नहीं दिया जाए। ये डिमांड ये नहीं कि आपने फाइल कर दिया, नो नो, वो तो बाद में भी फाइल करते हैं। हम कहते हैं सर्टिफिकेट लाओ, यानी आपको पहले ट्रेडमार्क लेना है और फिर आर्टिस्टिक वर्क आपको बाद में मिलेगा। तो ये एक ऑफिस की प्रैक्टिस है। ये भी वही चीज है कि किसी भी कॉपीराइट मटेरियल को could not allowed to be used कि वो एक अल्टरनेट के तौर पे या सब्स्टिट्यूशन फॉर द ट्रेडमार्क। तो इसलिए हम जेनेरिकली ये भी कहते हैं कि जी ट्रेडमार्क स्ट्रॉन्ग है, ट्रेडमार्क स्ट्रॉन्ग है दो, लेकिन जो उसका आर्टिस्टिक वर्क है ना वो आपकी कॉपीराइट में जरूर आप करें, उसको भी रजिस्टर करवाएं। लेकिन क्योंकि आपको ऑफिस की भी प्रैक्टिस हो गई है कि ऑफिस ही नहीं देगा आपका कॉपीराइट, उसमें आर्टिस्टिक वर्क को कोई चुरा नहीं सकेगा। ये वो सम एग्जांपल्स हैं कि ये अप्लाई, ये नीचे वाला जो था रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का बल्ले बल्ले, और किसी ने उसी के आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर कॉपीराइट आर्ट वर्क में अप्लाई कर दिया आर्टिस्टिक वर्क। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था और उस पे किसी ने अप्लाई जो है वो आर्ट वर्क कॉपीराइट में अप्लाई किया। तो ये वो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि पेप्सी एक मार्क रजिस्टर्ड है, उस पे उसके ऊपर अगर आप, अब वो पेप्सी पे तो नहीं ले सकता था ना, वो पेपरी वाला, तो उसने क्योंकि ट्रेडमार्क ये तो वेल नोन मार्क है ना, रजिस्ट्रार भी नहीं देगा, किसी क्लास में भी नहीं देगा, तो उसने इसी के आर्टिस्टिक वर्क को उठाया और कॉपीराइट में अप्लाई कर दिया। तो अब लॉ कहता है कि नहीं, तुम कॉपीराइट पे भी नहीं दे सकते, यू हैव नो राइट। तो इसलिए अब जरा ना जो चीटिंग वाला एस्पेक्ट था ना वो बहुत कम हो गया। ये देखिए अप्लाइड वर्क वही ना, वो पहले आसान हो गया था ना, लोगों ने इसको बहुत ही मतलब एक मजाक सा बना दिया था, एक खेल बन गया था कि एक उठा उसने वो करवा दिया। तो अब ये ऑफिस की प्रैक्टिस स्ट्रिंजेंट हो गई है कि अब हम इसके बिना नहीं करते। ये प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं ऑब्वियसली। अच्छा, ये एक केस लॉ मैंने इसलिए ऐड किया है कि पहले अभी ये हो रहा था कि एफआईए और उनके पास इसका पॉइंटर है, तो मैं थोड़ा सा टॉप बटन राइट। अच्छा ये वाला अच्छा, इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अभी का केस लॉ है 2020 का। वो अभी कुछ कोई और भी बात कर रहे थे कि एफआईए का ये, हाँ लास्ट वीक में हुआ है। तो हमें इम्प्लीमेंटेशन में और एफआईए तक ये बात पहुंचाने में ऑब्वियसली कोर्ट के थ्रू तो पहुंच गई, वो भी हमारी तरह ही अवेयरनेस होगी, लेकिन वो माइट बी कि वो यहाँ है अभी तो उन ऑफिस तक पूरी स्प्रेड नहीं है। बट ये चीज अब इम्प्लीमेंट हो रही है कि ये देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे ये जो है अंडर सेक्शन 13 दिस इज वन, द लेटर वुड रिफर द कंप्लेंट टू द कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और अथॉरिटी। इट इज दस क्लियर दैट द एफआईए कैन नॉट एंटरटेन, ये देखिए जजमेंट के अल्फाज है, एनी कंप्लेंट डायरेक्टली एंड रजिस्टर एफआईआर। किसके पास जाना पड़ेगा? दिस हैज अ पर्पस, द ऑर्गेनाइजेशन इज अ बुलवॉक अगेंस्ट frivolous complaints and undue harassment, ये एफआईए के लिए है। It is specialized body which has the expertise and the requisite data to verify whether there is actually a case of infringement
of intellectual property rights under the applicable law. अब आपको इसके पास नहीं है, ये ऊपर वाली जो बात है, any person lending infringement of this copyright appear before the organization. तो ये वो है कि अब आपको IPO के पास जाना है कि IPO आपको वेरीफाई कर दे कि ये आपका वैलिड ट्रेडमार्क है या आपकी कॉपीराइट का जो मैटर है वो FIA देखती है। पहले रेस्ट कर दिए फिर लेके जाए, वो उनके नॉलेज में नहीं है। द टाइम विल कम कि अब FIA डायरेक्टली जो है ना वो इंटरवीन नहीं कर सकेगी। अब जो है वो IPO देखेगा, वो आपको देगा कि अच्छा जी आप वैलिड हैं और आप जो है ना वो रिफर करेगा FIA, ठीक है, डायरेक्टली ये पार्टी को FIA नहीं जाना। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना पाकिस्तान मैड्रिड प्रोटोकॉल का जो है अभी हमने साइन किया है, मैड्रिड प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसके तहत भी ये है कि अभी सिस्टम डिवाइस हो रहा है, डेवलप हो रहा है कि आप अपना मार्क मैड्रिड सिस्टम के थ्रू पाकिस्तान में एंटर करेंगे, दाखिल करेंगे, तो उन कंट्रीज जहां पे आपको लेना है आप यहाँ फाइल करेंगे, उन कंट्रीज को टिक कर देंगे तो उन कंट्रीज में भी आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो ये वो एक फैसिलिटेशन है, एक नई चीज है कि बाकी कंट्रीज में चूंकि आपको रिस्पेक्टिव उन कंट्रीज में जाके वहां फाइल करना पड़ता था, अटर्नी ढूंढना पड़ता था, तो अब ये आप सिस्टम के थ्रू जाएंगे। ये इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन एक्टिविटी है कि हाउ यू इन्वेंट आपकी अगर हम इस टेक्नोलॉजी में देखें तो जितनी भी इम्प्रूवमेंट है कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे और जिस तरह से वो दिखाते हैं ना कि कंप्यूटर जब बना तो एक कमरे के जितना था, तो इसी तरह से मतलब जो फोन थे मोटरोला तक तो हमने भी देखा कि बहुत ही मोटा और भारी पत्थर की तरह, इतना पूरी एक यूनिट की तरह होता था, लेकिन स्टिल देखें आप इस टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन आई है। हम नोकिया का नाम सुनते थे लेकिन जो है लीस्ट इनोवेशन एक्टिविटी की वजह से नोकिया इज नोवेयर, यू कांट सी इन द मार्केट कि इनोवेशन एक्टिविटी जिसने की है वही जो है वो आगे आए। और ये वन एग्जांपल कि अगर आप इनोवेशन नहीं करते तो आप कहाँ जो है वो खड़े होते हैं। एक ये जीरा प्लेट है, ये कि मूवी के अंदर भी ये डॉक्यूमेंटेड है कि इन्होंने सबसे पहले बनाया था, लेकिन अगर आप देखें तो जिलेट जो है वो सिर्फ अपनी इनोवेशन की वजह से, देखिए इनोवेशन इज द बेसिक थिंग, उससे आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो उसी में वो आती है और आपका नाम भी जिंदा रहता है। मतलब ट्रेडमार्क इज समथिंग कि आप स्टैम्प करते हैं उसको कि ये चीज है, लेकिन पीछे जो है ना वो बहुत बड़ी मेहनत आपकी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है जो आप मेंटेन करते हैं। ये गार्ड फिल्टर्स में इनका अगर देखा जाए तो जहां तक इनका बिजनेस स्प्रेड हुआ है और इनका जो है ये ट्रेडमार्क भी है। मास्टर टाइल्स वाले लाहौर चैम्बर में तो इनकी काफी वो है, मतलब इनकी मतलब एक उन्होंने पूरी फैसिलिटेट किया हुआ है नीचे वाले पोर्शन को ना, उनकी जिस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन का है ना, तो ये पूरा डेवलप करने में इन्होंने हेल्प की है मास्टर टाइल्स में। हाँ, फाइनेंशियल। तो ये जी हमारा लोगो है, अपना हक छेड़ो मत और किसी का हक छेड़ो मत। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा डिटेल्ड ये सेशन था और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके लिए बड़ा ये साबित होगा, इंशाल्लाह फ्रूटफुल होगा साबित। हम बिफोर वी ओपन द हाउस आई वुड रिक्वेस्ट कि हम जिस तरह से हमने काउंटर्स FBR का लगवाया, वापडा का लगवाया, हम IPO का एक काउंटर सियालकोट चैम्बर में लगवाएं, क्योंकि हमारा सियालकोट का 2.5 बिलियन $US की हमारी सालाना एक्सपोर्ट है, जो कि असल में आगे बाहर जाकर 20 से 25 बिलियन हो जाती है, because we are selling to the brands. We are not, we don't have brands, but potential is there. We have expertise, we have good designer, we have good workmanship, but the thing is, we are still very much away from intellectual property, IPO, copyright. So we need to, understand this and take the opportunity. Since previously in last 2 years due to COVID, आपने देखा कि हर चीज ऑनलाइन हो गई है,
और उसमें Amazon भी अभी आ गया पाकिस्तान में. It is much more easier for brands to excel during these times. Much more easy for small brands. So I would like to request you to please talk with your upper management, and we will also send a written request also कि सियालकोट चैम्बर में एक आपका यहाँ पे हम आपको एक ऑफिस बना के दें ताकि हमारे जितने मेंबर्स हैं सारे आपकी सर्विसेज का फायदा उठा सकें. आई वुड लाइक टू ओपन द हाउस. अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो प्लीज वन बाय वन लाइक टू पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा और उसके बाद फिर आपका सवाल जो है प्लीज. मेरा नाम इकबाल इकबाल है जी और हम एक्सपोर्ट करते हैं फ्यूल लॉजिस्टिक को. मेरा उसको आपने बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया इसमें. तो मैं भी आप पूछना चाहूँगा कि आप दूसरे लोगों के लिए भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन रहती है कि आप पाकिस्तान में जो रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि सियालकोट में जितनी प्रोडक्ट्स बनती है उनमें 99% जो आइटम्स है वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाए. अब उसमें ये आता है कि कुछ लोगों की बड़ी अच्छी इनोवेशन होती है, बड़ी उन्होंने ऑर्डर डील किया वेबसाइट होती है, तो वो जब अपने प्रोडक्ट बाहर के मुल्क में इंट्रोड्यूस कराते हैं या भिजवाते हैं तो वहां पर रजिस्ट्रेशन कोई भी मतलब देख के उसको अपने नाम से रजिस्टर करवाना पसंद करता है. तो आपकी मतलब ये है कि यहाँ से क्या बाहर के लिए रजिस्ट्रेशन अपने ब्रांड की दैट इज पॉसिबल. अच्छा, ये है कि अगर आप अपना ब्रांड पाकिस्तान में रजिस्टर करवाते हैं, जहां जिन कंट्रीज में आप भेज रहे हैं तो आपको वहां पे भी रजिस्टर करवाना होगा. लेकिन अब उसके लिए जो सिस्टम है, हाँ बिल्कुल पूरी यूरोप में करवाना चाहते हैं तो वो मैड्रिड का अग्रीमेंट है. पाकिस्तान ने अभी मैड्रिड को साइन कर दिया है और अभी हम जिसको कहते हैं ना कि ऑफिस अपने आप को अपनी कैपेसिटी बिल्टअप कर रहा है कि अब हमने एप्लीकेशंस को डील करना है, उसका फिर मोड ऑफ जो पेमेंट है वो कैसे मैकेनिज्म होगा, क्योंकि उसमें जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएनओ का इदारा है वो भी इन्वॉल्व है. कुछ फी का चंक जो है वो उनको भी जाएगा. तो वो ये सारी मोडालिटीज, ये सारे प्रोसीजर से अभी ऑफिस गुजर रहा है. लेकिन अभी जैसे हम अगले साल में जो है एक हम उनको एक मतलब टाइमलाइन उन्होंने हमें दी हुई है कि अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने, जब आपकी हो जाए तो हम आपको फंक्शनल कर देंगे. फिर हमारा यहाँ बैठे हुए सिस्टम जो है वो वाइपो के साथ इंटरलिंक हो जाएगा. जिन जिन कंट्रीज में आपने करना है वाइपो इज अ मिडल मैन, वो उन कंट्रीज में आपकी एप्लीकेशन भेज देगा और इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी. तो आपके पास कोई आइडिया है कि मतलब इसमें क्या कॉस्ट आ रहा है? नहीं, वो देखिए ये भी एक है कि हमारे जो अब ट्रेडमार्क के रूल्स हैं, जैसे 3000 यहाँ की फीस है, तो जब आपने उन कंट्रीज में अप्लाई करना है तो उनकी जो फी है वो तो आपने अलग अलग देनी है, ठीक है ना. लेकिन वो आपने किस स्टेज पे देनी है वो आपसे मतलब ये भी अब तय पाना है कि आपसे अभी आपने टिक लगाया कि मैंने 4 कंट्रीज में लेना है तो वो फी अभी आपसे ले ली जाएगी, ठीक है, या फिर वो लेटर ऑन फी आप दे पाएंगे कि जब वो वाइपो में चली जाएगी और वाइपो कहेगा कि अब आप अग्री करते हैं इस बात से कि हमने इन कंट्रीज में भेजनी है, तो फिर आप यहाँ फी जमा करवाएंगे. मतलब सिर्फ ये है कि आपकी वो सारी सिस्टम है कि कैसे डिवाइड होना है. लेकिन ये है कि आपका यहाँ बैठे काम हो जाएगा. आप यहाँ का ऑफिस आपसे कहेगा जी अभी आपकी इन कंट्रीज में जानी है एप्लीकेशन और आप ये फी जमा करवा दें, तो आपकी यही आप जमा करवाएंगे, हमारी करेंसी में जमा करवाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो वाइपो से फिर उन कंट्रीज में चली जाएगी. तो ये एक फैसिलिटेशन जो है. इन केस ऑफ अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि एक ब्रांड आपके यहाँ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, आप बाहर की कंपनी है वो भी उसको अपने नाम से कराना चाह रही है इसी नाम से, वो देखता है कि इसकी मार्केटिंग अच्छी हो सकती है, ये ज्यादा अच्छा सेल हो सकता है, तो क्या यहाँ से मतलब उसके लिए कुछ किया जा सकता है? नहीं, वो ये देखें आपने अगर पाकिस्तान में करवाया और ये जो सिस्टम की जो बात करें आपने उन कंट्रीज में करवा दिया, फिर उन कंट्रीज के लॉ के मुताबिक जो इन्फ्रिंजमेंट है वो आप डील करेंगे. इन्फ्रिंजमेंट पाकिस्तान से डील नहीं होगी. आज क्योंकि हम कनेक्टेड होंगे वाइपो से, वाइपो कनेक्टेड है उन ऑफिस से, ये एक रूट दिया जा रहा है आपको कि जी यहाँ जाएं, आपकी एप्लीकेशन आपकी यानी आपको फी अलग अलग एक अटर्नी से बात करने की वो जरूरत नहीं पड़ेगी ना. आपका कंसर्न अपने यहाँ के ऑफिस से है, ठीक है, जो आपको चीज आ रही है आप उनको प्रोवाइड करते जा रहे हैं. लेकिन जो इन्फ्रिंजमेंट की बात है वो अगर आपका यूएस में बैठा हुआ कर रहा है तो वो वहां के लॉज के अकॉर्डिंग आप फाइल करेंगे, वो तो फिर कोर्ट वहां की डील करेंगे. जालूर इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ और मैं अमेज़न पे काम कर रहा हूँ तकरीबन 4 साल से.
तो ये जो फैसिलिटी है पाकिस्तान में उन्होंने अमेज़न को अलाउ कर दी है। तो अमेज़न के अंदर जाके भी ये फैसिलिटी मौजूद है कि अगर हम किसी ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उधर उसके अंदर जो है ना वो लॉयर्स अवेलेबल हैं, ये कंपनीज अवेलेबल हैं, जिनको जाके आप क्लिक करके उनके एप्लीकेशन दे लेते हैं और डायरेक्टली पाकिस्तान से रहते हुए ये चीज जो है ना वो हम कर सकते हैं। नहीं, ये तो वो वाली बात है ना कि ये तो इसमें हम गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है ना, उसमें तो पार्टी टू पार्टीज हैं। जैसे आपको अमेज़न ने अब आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि यहाँ पे एक लॉयर्स की एक टीम बैठी है, आप यहाँ पे जाएं या फिर ये वेबसाइट है इस पे जाएं, इनसे कांटेक्ट करें, डील करें, ये आपकी जहां जहां आप चाहेंगे करवा देंगे ना। दिस इज द सर्विस विच यू कैन सी। मतलब अच्छी बात है कि अमेज़न इज अ प्लेटफॉर्म जहां से आप ये सर्विस ले लें, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ ये वो सर्विस है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको दे रही है। मतलब इसका तो कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता ना। ये तो प्राइवेट तो आप वैसे भी कर सकते थे कि जैसे आपने पाकिस्तान में फाइल किया, आप चाइना में चूंकि माल भिजवा रहे हैं, वहां पे भी जिस कंपनी को भिजवा रहे हैं उनका एक लॉयर है, तो आप कहते हैं कि सारे बिजनेसेस ऐसे ही करते हैं, आप चाहे उस कंपनी के लॉयर से कहते हैं कि ये ट्रेडमार्क मेरा भी यहाँ रजिस्टर करवाना है, तो वो आपका करवा देते हैं, वो उसमें कोई ऐसा नहीं है। बल्कि आप लोगों के तो केस में ये भी है कि बहुत सारी चीजें आप उन ब्रांड्स की चीजें बना रहे होते हैं, तो वही अलाउ करते हैं आपको कि जी उन्हीं की वो स्टैम्प और वो सारा कुछ होना चाहिए। बट कम टू दिस पॉइंट कि अब आपने अपनी चीज जो है वो कैसे डेवलप करनी है, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो इस चीज से डेविएट नहीं करते कि अपना जो उनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी है, जो उनका ट्रेडमार्क है, वो पाकिस्तान में भी लिया हुआ है उन्होंने, उन कंट्रीज में भी लिया हुआ है, दे आर विजिलेंट इनफ। तो वो तो फिर ऑब्वियसली कि हमें एज अ जो है वो एक हम उनके लिए लेबर फोर्स है। बट अगर आपकी अपनी कोई चीज है जिसके अंदर इनोवेशन है, तो आप जरूर पाकिस्तान में भी फाइल करें एंड ट्राई टू फाइल इन दोज कंट्रीज जहां जहां आपका बिजनेस है, मेरा ताकि ख्याल आप अपने मार्क को देके चलें। इसमें जैसे कि यूएस का अलहदा से, ईयू सारे का अलहदा से हो जाए, क्योंकि अब ईयू है, यूरोपियन यूनियन जो है, जितने भी कंट्रीज हैं, एक एक तो मेरा ख्याल है यूरोपियन पेटेंट ऑफिस खुद इस मॉडल को कर रहा है कि आपने अगर यूरोपियन पेटेंट यानी यूरोपियन ऑफिस में अगर आपने ट्रेडमार्क लेना है, यूरोपियन ऑफिस में आप अप्लाई करते हैं, तो फिर वो सारे ईयू के कंट्रीज के लिए जो जो उसके मेंबर हैं। लेकिन अगर आप नहीं वो रूट अप्लाई करना चाहते, फिर अलग अलग में जिनमें 2-4 में आपको चाहिए वो करते, तो दिस इज योर चॉइस। देखिए, हाँ, अगर आप पूरे ईपी को करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स कॉस्टली। 6 मैं अभी देख रही थी एक पाकिस्तानी पेटेंट के लिए ट्रेडमार्क में भी उनकी फीस काफी है, लेकिन पेटेंट की फीस बहुत हाई है। जैसे हम सिर्फ 6,750 लेते हैं, वो कुछ 6,000 या $600 मतलब आपकी को 85,000 के करीब सिर्फ फाइलिंग फी बन जाती है, एक फाइल करना ना। तो इट्स अ बिग फॉर अस के अच्छा ये सिर्फ फाइल ही करना, अभी पता ही कोई नहीं कि होना क्या है, ठीक है ना, वो तो बात। अच्छा, इसमें मैं आपको चीज बताता चलूं, क्योंकि सियालकोट जो है वो हमारा मेन इंटरेस्ट होता है यूरोप में, अमेरिका में, बाहर की दुनिया में है हमारा सियालकोट, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 99.9% के प्रोडक्ट्स है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इसलिए हमारा ज्यादा इंटरेस्ट यूरोप में, अमेरिका में, दूसरी दुनिया में। तो इस हवाले से जरा अगर थोड़ी सी आपकी प्रोसीडिंग कोई थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, ताकि हम, बिकॉज वी वांट टू क्विकली रजिस्टर देयर, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा ज्यादा जो है ना फोकस इज आउटसाइड, सो वो बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी एक एग्जांपल साइम साहब दे रहे थे कि एक बंदे ने यहाँ पे भी करवा लिया और वहां पे भी हो गया, उसके बाद उन्होंने केस भी किया, लेकिन उन्होंने कहा जी यूएस में वो रजिस्टर्ड था, तो उन्होंने उनका जी ये तो यूएस में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसने बाद में करवाया के बावजूद। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारा ये बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और इसकी बड़ी वर्थ होनी चाहिए हमारे जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं उनकी, वो ताकि हमारा जो कोलैबोरेशन आईपीओ का वो इंटरनेशनल जो इसकी बॉडी है यूएस में या ईयू में, उसके साथ इसका बहुत अच्छा जो है ना लाइसेंस होना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस इस तरह कनेक्टेड नहीं है। लॉ कहता है कि हमारा डिसीजन इंडिपेंडेंट है, उनका वो है इंडिपेंडेंट है। अब हम इस चीज को नहीं मान सकते कि अगर यूएस में किसी ने पेटेंट दे दिया या उसने ट्रेडमार्क दे दिया तो हमारे लिए भी ऑब्लिगेशन है। टू सम एक्सटेंट वी कैन डेविएट ऑन सम पॉइंट, जैसे कोई अगर इसी तरह से मैंने कहा ना कोई स्कैंडलस या कोई फ्रिवलस इस तरह का मार्क है, तो और हमारी अकॉर्डिंग वो डिसेप्टिव मार्क की कैटेगरी में आता है, तो हम उसको नहीं भी दे सकते। इसी तरह से पेटेंट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर कोई अल्कोहल है हमारे मना है, कोई एक्सट्रैक्शन, कोई शराब की एक्सट्रैक्शन का किसी ने
प्रोसेस दे दिया, शाह को एज ए प्रोडक्ट वो रजिस्टर करवाना चाह रहा है कि ये बिल्कुल नई फॉर्मुलेशन में है, तो हम मोरालिटी की बेसिस पे उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो जहां तक स्ट्रॉन्ग होने की बात है ना, तो हर कंट्री का जो आपको आईपी का ऑफिस जो राइट देता है, वो राइट आप उस कंट्री में ही एक्सरसाइज करते हैं। वो बेशक आपका पेटेंट हो, बेशक आपका ट्रेडमार्क है या डिजाइन है, एक्सेप्ट कॉपीराइट। कॉपीराइट वो चीज है जो कि आप कहीं पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। वो इसलिए भी है कि हमारे लॉज हमारे अपने बनाए नहीं है, हमने बाहर की दुनिया ने हम पे इम्प्लीमेंट किए हैं। पाकिस्तान ने जब ट्रिप्स का अग्रीमेंट ज्वाइन किया WTO का, वरना हम पे बहुत सैंक्शंस लग जाती, तो 95 के ट्रिप्स अग्रीमेंट ने ये चीजें हमें बता दी। ये जो मैं आपको आज बता रही हूँ ना कि ये चीज डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, इस तरह बाकी लॉज की जितने क्राइटेरिया हैं, दीज आर गिवन टू अस कि जी आपने ये फॉलो करना। लेकिन कुछ बातें जैसे मैंने भी जिक्र किया, मोरालिटी है, तो फ्रिवलस है, डिसेप्टिव है, उनकी बेस पे रिजेक्शन का रूम हमारे पास भी है, ठीक है। तो वो ये टेरिटोरियल राइट है, अगर आपने पाकिस्तान में लिया तो आपने पाकिस्तान में राइट एक्सरसाइज करना है। किसी भी कोर्ट में जाके आप कहेंगे कि जी बात दूसरा मेरे इन्फ्रिंज कर रहा है। आपने यूएस में आपकी एक्सपोर्ट की मार्केट है, पाकिस्तान में आपने ट्रेडमार्क ले दिया, यूएस में दे आर फ्री टू यूज इट, वो आपका ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपने उन कंट्रीज में भी करवाना है जहां जहां आपकी मार्केट है, ठीक है। तो ये आपका एक आपकी नॉलेज पे बेस करता है, आपके डिसीजन पे बेस करता है कि आप वक्त से पहले ये डिसीजन लेने के मुझे उन कंट्रीज में, बिकॉज इट टेक्स टाइम। हर ऑफिस जो है वो एक टाइम लेता है रजिस्टर करने में, तो ये आपका बिजनेस शुरू करते वक्त का या उससे भी पहले का ये डिसीजन है कि जी इस पे ट्रेडमार्क भी देना है। अब कंपनी भी तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, पहले रजिस्टर करवाते हैं। तो लॉ ने इसलिए इसको ना जरूरी, बहुत जरूरी है, लेकिन आपके ऊपर लागू नहीं किया कि हर सूरत में ट्रेडमार्क लेना, नहीं लागू किया ना। लेकिन आप देख रहे हैं सक्सेस उन लोगों की है, कोर्ट उनको प्रोटेक्शन दे रहा है जो जिनकी रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट भी है। दूसरी बात टेरिटोरियल की है, उससे तो अब आप देखिए हम डेविएट कर ही नहीं सकते। आप कहें कि जी मैंने पाकिस्तान में लिया है क्योंकि यूएस वाला बंदा मेरा बना ले तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने चूंकि पाकिस्तान में लेने का डिसीजन किया था, तो सिर्फ पाकिस्तान की कोर्ट में जाके आप अपने ही भाई दूसरे के कंपेटिटर के अगेंस्ट तो जा सकते हैं, लेकिन यूएस की कोर्ट में आप नहीं जा सकते। इसमें मैडम थैंक यू वेरी मच, आपको चैम्बर टाइम में बड़ा शार्प इश्यूज पे बात हो रही है। इसमें जो 2-3 चीजें ऐड करूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, नाइक है, नाइक का ब्रांड नाइक है, ड्राई फिट नहीं है, उसमें नीचे लिखा होता है शर्ट के ऊपर ड्राई फिट। ड्राई फिट इज द प्रोसेसिंग ऑफ फैब्रिक, जो उस पे अप्लाई करते हैं फैब्रिक के ऊपर। अब मैंने क्या किया कि मेरा ब्रांड ड्राई फिट ही मैंने रजिस्टर करवाया, जो वर्ड है ड्राई फिट ऊपर आया है। जैसे आपने कहा कि वो ये कुछ नहीं कह सकते, अगर वहां पे है तो वहां पे हो सकता है, ऐसा नहीं। मेरे इनके साथ अदालत में भी चल रही है, और इनके जो लॉयर हैं, इनकी टीम है, वो भी मेरे साथ इसी बात पे डिस्कशन हो रही है कि आप पाकिस्तान में आपका ये रजिस्टर्ड है, आप ये नहीं कर सकते। जो यूरोप में उनका रजिस्टर पाकिस्तान में मेरा है, लेकिन आपने ये कहा है ना कि ये वो कर सकते हैं, तो वहां पे नहीं कर सकते, यहाँ पे। लेकिन ये जो चीज है, एक तो ये चीज है, दूसरी इसमें क्लास है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो VS की क्लास है वो 28 है, राइट। और जो लेबलिंग की क्लास है वो आपको पता है वो उस पर आ रही है। जैसे आपने वो बताया था, आपने जो कुछ प्रोडक्ट उसमें जो आ रही है 40 में, 39 में आती है, 40 में शायद, ठीक है सर्विसेज जी सर्विसेज जी 45 में आ रही है। तो यहाँ पे भी आगे चीजें जो होती हैं। दूसरा, आपकी ये बड़ी ज्यादती है कि आप जो जब ये कॉपीराइट देते हैं, ये डिजाइन जैसे आपने बताया कि ट्रेडमार्क देखे बगैर हम पहले दे रहे थे, कॉपीराइट आप दिया आपने एक पे 25 क्लास पे, इसमें आपने क्लासेस भी नहीं मेंशन की कॉपीराइट पे ना। तो ये भी आप की क्लासेस नहीं है कुछ जी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी, यही मैं बता रहा हूँ। लाइक आप गए इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जैसे हमने कहा तो शिप है, अगर वो आप 25 क्लास में स्पोर्ट्स में कराया आपने उसको, और वो बंदे ने कॉपीराइट ले लिया सब पे, ठीक है, तो आप वेरी करेंगे क्लास के ऊपर कि आया कॉपीराइट पे। मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो आपसे, अच्छा, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक इश्यू चला है, एक बंदा वहां से आया, उन्होंने आके कॉपीराइट करवाया, FI की टीम लेके यहाँ से बंदे को रेस्ट कर लिया। बड़ा रीजनेबल बंदा था, अच्छा काम कर रहा था, वेल नोन। अब उसको रेस्ट करके वो तहसील बाजार से लेके उनकी गाड़ी पार्क हुई थी मौला चौक में, ठीक है, उसको हथकड़ी लगा के FI वाला लेके आया। इधर से बाई चांस मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने गाड़ी खड़ी की, मैंने कहा क्या इशू चल रहा है, सर जानने वाले लोग थे, उन्होंने कहा जी ये इशू है कि इन्होंने कॉपीराइट इनके पास। तो मैंने वो FI के इंस्पेक्टर सलाम थे, मैंने उनसे बोला यार मुझे ये फाइल दिखाएं, आपके पास इश्यूज है, मुझे थोड़ा सा डिस्कस करें, इन लोगों को नहीं पता, इन्फॉर्मेशन नहीं, आप मेरे से भी बात करें।
खैर उसने ये बड़ा फोर्स करने के बाद मुझे वो फाइल नहीं दिखाई, वो चला गया कोतवाली थाने, जहाँ पे उसने उसकी एंट्री करवा के उसको लेके जाना था एफआई लाहौर इधर गुजरात। खैर मैं थाने में पहुंच गया, किसी के साथ बैठ के वैसे ही को मेरा, मैंने कहा चलो किसी की हेल्प हो जाए। जब मैं वहां पे पहुंचा, जो आप बात कर रही है ना कि ये चीजें होना नहीं चाहिए ऐसा, वो बंदे ने ये कहा, मैंने जब उससे कहा कि मुझे पेपर दिखाओ कि आप किस बेस पे इसको लेके जा रहे हैं, तो फिर मैंने जब उसको पेपर देखा तो उसका कॉपीराइट जो था वो किसी और चीज पे था और वो क्लास कोई और में पकड़ा था। ठीक है, जब उसको मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, उससे बात की, तो ये कह रहा था कि ये अदालत में आपने ये बातें करनी है, कोर्ट में, मैं इसको नहीं छोड़ सकते वहां पे। तो ये बड़ा एक ज्यादती है, आप इसको पब्लिश करें कि जो जिसकी क्लास है उसकी कॉपीराइट भी उसी को होना चाहिए। मेरा ये मौकफ है, आप इसको चेंज करके थोड़ा सा देखिए। ऐसे तो कोई भी बंदा किसी को भी पकड़ सकता है किसी भी जगह पे, तो फिर कॉपीराइट बेहतर है, फिर हम ट्रेड क्यों कराएं, सारे कॉपीराइट ही करा लेते हैं। तो एक तो ये मेरा क्वेश्चन है इस पे, कि दूसरा ये आपने कहा है कि वो अभी पब्लिश नहीं किया आपने, एफआईए वालों को पता नहीं है, तो आप देखेंगे जो बंदा उसको हथकड़ियां लगा के वो बंदे घुमा रहे हैं, उसकी इज्जत वापस आ जाएगी। तो ये भी यहाँ पे भी आपकी कमजोरी है कि आप उसको पब्लिश करें। अगर एफआईए उसमें इन्वॉल्व है कॉपीराइट में, तो आप उनको भेजिए बाई लॉस कि ये है, आप इस तरह बंदा नहीं पकड़ सकते। आपने भी स्क्रीन पे डिस्प्ले में भी दिखाया है कि जो आप अपना लॉ दिखा रही थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पर जरा थोड़ा गौर करें। दूसरा, प्रेसिडेंट साहब ने आपको आईपीओ के मतलब बताया कि यहाँ पे काउंटर होना चाहिए, काउंटर होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है इसमें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें ये फेवर करें कि हमें जो इनिशियली जो स्टेज होती है, इसमें आप जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन देते हैं, आपने वकील आपके पास जाते हैं, वकील के पास आप कहते हैं कि मैंने नाम रजिस्टर करवाना है, वकील आपको नहीं बताता कि ये हो सकता है नहीं, वो आपसे फीस भी ले लेता है, स्टेट बैंक की फीस भी ले लेता है। बाद में वो कहता है कि उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया इलेक्शन में 6 माह के बाद। जैसा कि आपके पास यहाँ पे आप तो रजिस्टर तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक सेस है। मैं ये चाहता हूँ कि आईपीओ के साथ आप वो सेस दें, ताकि जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है हमें पता चल जाए कि ये कंफर्म हो चुका है, आया हम इस पर टाइम जाया करें, आगे इनको फीसिस दें लॉयर को, और ये हमारे लिए कन्वीनियंट है। ताकि कराची तो हमारे से बहुत दूर है, हम अप्रोच नहीं कर सकते, हर बंदा नहीं अप्रोच कर सकता, बड़े लोग सीधे साधे यहाँ पे सियालकोट इंडस्ट्री बड़े लोग, और सब आपको पता ही है, सादे से लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये मोनोपोली भी खत्म होनी चाहिए। तो इससे बेहतर है कि काइंडली आप हमें आईपीओ के साथ एक्सेस दें कि हमें पता चल जाए कि मेक श्योर ये ब्रांड नहीं है, ये टेम्परेरी हमारा एक्सेप्ट हो गया है, उसके ऊपर आप काम भी करना शुरू कर दें, जो आप माल भेजना चाहते हैं वो भी भेजें, ताकि इंश्योर होने तक आपका 6 to 8 मंथ लगते हैं, तो उसमें आपका टाइम भी बचे। थैंक यू। अच्छा, ये मुझे जरा क्लियर कीजिएगा, ड्राई फिट आपने पाकिस्तान में ट्रेडमार्क अप्लाई किया? जी, मैं ट्रेडमार्क मेरा रजिस्टर्ड है। अच्छा, ड्राई फिट आपका रजिस्टर। लेकिन नाइकी कहता है कि आपका मेरा यूरोप में है, फ्रांस में, इटली में, तो आप यहाँ पे नहीं, उनकी पूरी टीम ये सारी चीजें, अब वो मेरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका लेबल में है, उनका फैब्रिक के ऊपर नहीं है, 28 क्लास में नहीं, 28 क्लास जो वीयर्स है, तो मैंने उस पर लिया हुआ। तो आया इस पे, मुझे ये बताइए कि इस पे हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हम उसको कॉपीराइट से भी पहले करवा लेंगे, क्या करना चाहिए, मुझे बताइए थोड़ा इस पे ब्रीफ कर दें। अच्छा, ये तो मैं आप मुझे कोई अपनी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे फिर है, लेकिन ओवरऑल ये कि नाइकी चूंकि एक वेल नोन मार्क, तो दे कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन वो नाइक है ना, ड्राई फिट लफज नहीं, ड्राई फिट पे आपको देखना पड़ेगा कि ड्राई फिट पे उन्होंने किसी ना किसी, ये सीरीज ऑफ मार्क में, जैसे अब एक कंपनी है ना, वो कई आइटम बना रही है, तो वो हर आइटम के ऊपर लेनी होती है उनके साथ, मतलब
अच्छा, ये जो नाइका ड्राई फिट का केस है ना, ये आप मुझे जरा दिखा दीजिएगा, then I'll be able कि इसमें ये है, हाँ डिपेंड करता है इसमें ना, क्योंकि वेल नोन मार्क के लिए कोर्ट जिस तरह का भी डिसीजन एफआईए जो काम कर रही है उस पे मैं कह अच्छा, रहा हूँ एफआईए जो काम करी, देखिए ये कोर्ट का डिसीजन, ठीक है ना। अब कोर्ट के डिसीजन को, एफआईए भी गवर्नमेंट का इदारा है, हम भी हैं, ठीक है। हमने कोर्ट की जिस रूलिंग को फॉलो और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, वो पहली वाली तो ये थी कि जी ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को हम ये नहीं होगा कि ट्रेडमार्क कोई और ले जाए और उसी के आर्टिस्टिक वर्क को एज ए कॉपीराइट कोई और करवा दे। हमने इस चीज को काउंटर किया, मतलब जाहिर एक टाइम के बाद किया कि हमने इसको प्रैक्टिकली इस तरह से किया कि अगर कोई ट्रेडमार्क का ओनर है और उसके अलावा कोई और आता है और वो उस पर कॉपीराइट आर्टिस्टिक वर्क की कैटेगरी में करवाता है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि भाई अपना सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क का ले लो, अगर तुम ही ओनर हो तो हम तुम्हें कॉपीराइट देंगे, वरना नहीं देंगे। अब XYZ को नहीं मिलता। मैं आपके राइट, ये आपके एंड पे है ना, एफआईए के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नहीं नहीं एफआईए के ये पास सॉरी, वो जो इन्फॉर्मेशन एफआईए वाली की वो तो बस कर लिया उसने बंदे नहीं, वो जो एफआईए की इन्फॉर्मेशन है वो 2020 की अभी वो है, तो काइंडली इसको अभी पब्लिश 20 करें। नहीं वो देखिए, वो एक कोर्ट की रूलिंग है, अगर हम उसको अपने ऊपर एज एन इम्प्लीमेंट करते हैं कि इनिशिएटर हम हैं, हमारे पास वो आएगा बंदा पहले और हम उसको कहेंगे कि जी तुम्हारा वैलिड ये है, कॉपीराइट है हमारे पास, तो फिर हम रेफर करेंगे, गवर्नमेंट बॉडी टू गवर्नमेंट बॉडी रेफर करेगी एफआईए को, फिर वो एफआईए के पास जाएगा, वरना एफआईए डायरेक्ट डील नहीं करेगा जिस तरह से आके छापे मारेगा। अब वो भी देखिए, अब ये मेरी उसमें नहीं है हाथ में कि मैं एफआईए को पकड़ूं इस बात पे कि जी आपने इस तरह से फलानी जगह पे क्यों किया। एफआईए खुद एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इदारा है, अगर वो नहीं कोर्ट की इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो जैसे आपको अभी नॉलेज आया है तो यू कैन से कि अच्छा जी ये तो आपने पहले उससे लेके आना था, ये वायोलेशन कर रहे हैं। बहुत सारे वकील खुद ही इस बात पे भी कोर्ट में चले जाते हैं कि जी एफआईए वायोलेट कर रहा है। एफआईए से पहले उसको नोटिस जरूर आया होगा, नहीं है, उससे पहले नहीं हो नहीं उन्होंने एफआईए वो आपकी बात ठीक है, वो तो एफआईए बंद नहीं नोटिस होगी। भेजता है, करता है, बट समहाउ अब हम ये नहीं कह सकते कि वो, जैसे ये बात आप भी एक स्टोरी बीच में भी बता रहे थे कि वो उनका आपस में भी वो हो गया था, वटएवर, जो कि हमारी एक है नॉर्म बन गई है कि हम काम ही ऐसे करते हैं कि उनका आपस में मुखमका था, ये वो था, ये सारी सेपरेट बातें हैं। लेकिन उससे हटके ये है कि जब कोर्ट की रूलिंग यहाँ पे मौजूद है तो फिर एफआईए को भी इम्प्लीमेंट इसको करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली इसको एंटरटेन करने के मजाज नहीं है, बात भी बताने की इसी वजह से है कि हम पब्लिश तो नहीं इस बात को कर सकते, हम तो जहां हमें मौका मिलेगा 4 लोग इकट्ठे होंगे, हम ये बात बताएंगे कि अगर इंफ्रिंजमेंट का इशू है, एफआईए आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगा, आपके पास जो है आपको आईपीओ के पास पहले जाना। तो जी बिल्कुल, वो इंडिविजुअल केसेस है, हाँ, तो individual। दोनों साइडों की स्टोरी सुन के ही बंदा वो डिसाइड कर सकता है ना। तो चलें, इसके अलावा वली साहब यू वांट टू आस्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब, बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह आप तशरीफ लाएं। और ये सीरीज ऑफ अवेयरनेस चलनी चाहिए, और जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि एक काउंटर यहाँ पे होना चाहिए, और जिससे हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, और ये भी चूंकि बहुत पहले होना चाहिए था, आईपीओ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के आने के बाद जब आईपीओ शुरू हुआ तो बहुत सारी बातें दूर हुई हैं और आपकी वर्किंग में भी फर्क पड़ा है। लेकिन अभी तक जो जैसा पैटर्न राइट में एक ही दफा हमें मिल जाता है सारा कुछ, अगर ट्रेडमार्क में भी उसी तरह हो जाए तो 5 साल फिर 10 साल वो पीरियड भी, और जो टाइम है, ड्यूरेशन है रजिस्ट्रेशन की, उसको भी अगर कम किया जाए तो ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है हमारे लिए। तो बहुत शुक्रिया कि आप आए, और हमने, और ये सिलसिला चलना चाहिए क्वार्टरली बेसिस पे या 6 मंथ्स बेसिस पे, इसको थोड़ा सा इंश्योर करें, और स्पेशली काउंटर के हवाले से बहुत शुक्रिया जी। काउंटर के हवाले से जी काफी रिक्वेस्ट आ रही है, मैंने भी कहा है इंशाल्लाह इस हवाले से बिल्कुल, आप इन रिटर्न भी हमें हाँ, जरूर in भेजें, return और हम- मैं खुद जाके भी क्योंकि इस चीज को, हमने एफबीआर का, कस्टम्स का, वापडा, हाँ जी, टैक्स इम्ब्यूजमेंट का, सो ऑलरेडी हमने काफी सारे काउंटर्स लगवाए हैं, बड़ा फायदा हो भी रहा है। SCCP था हमारे पास। जी बिल्कुल। और फिर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए हम बताना ये चाहते हैं कि हम सियालकोट जो है ना जी, गेटवे है पूरी दुनिया का, यूरोप का, अमेरिका का, हम एक्सपोर्ट करते हैं 100% हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है उसकी। तो
खैर इस तरफ हमारा बहुत जरूरी है, पाकिस्तान में भी और बाहर भी है हमारा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपका आपस में जो है ना इस हवाले से भी थोड़ा सा काम होना चाहिए। एक चीज में थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी जैसे साइन भाई कह रहे थे कि टेम्पररी के साथ हमें भी पहले मिलना चाहिए, तो मेरा ख्याल है उससे पहले मैं शायद कि सर्च रिपोर्ट का कोई ऐसा काउंटर यहाँ पे होता है, जब इनका जो ये जो सर्च हम कर लें कि बिफोर टाइम क्लास में कौन कौन सी क्लास में हम जो नाम रख रहे हैं या कोई ब्रांड है तो उसको हम चेक कर सकते हैं, उसका भी कोई थोड़ी बिल्कुल वो एक जो काउंटर होगा उसके अंदर ये फैसिलिटीज तो जाहिर होंगी। वो चीज ये तो कि अगर basic- जैसे आपका काउंटर डेवलप हो जाता है तो फिर वो सारी सर्विसेज भी आपको मिलेंगी। उसमें ये भी सर्विस होगी, जैसे हमारे अपने आईपी के मतलब जो हमारा अपना इंडिजिनस सिस्टम है जिससे आप सर्च भी करते हैं, वो आप देखेंगे पहले ये था कि वो सिर्फ कराची बेस्ड था, कराची के ऑफिस में था। फिर जैसे जैसे लोग मूव किए, हम लाहौर में आए, इस्लामाबाद में पुलिस गए, तो वो सारा सिस्टम अब कनेक्टेड है। इस कराची में बैठा हुआ बंदा वही काम कर रहा है, उसी सिस्टम पे काम कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। अब ये चीज तो आईटी में कॉमन सी हो गई है ना। तो इसी तरह से हमारे जो लाहौर में है वो पर्सनल सर्च की फैसिलिटी है कि लाहौर ऑफिस में आप विजिट करें, वहां बैठे और 300 या 200 का वो ड्राफ्ट बनता है, तो आपको 15 मिनट देते हैं कि जी आप सर्च कर लें। तो उसके लिए थोड़ी आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है कि अगर आप 2-3 दफा आप देख चुके हैं डेटाबेस को तो आप जल्दी सर्च कर लेंगे, और वो मतलब वो भी है। लेकिन इसके अलावा हमारी जो अपनी सर्च है वो TM55 की सर्च है, वो फिर हम 1000 रुपया लेते हैं आपको, ओवरऑल आपको भेजते हैं। अच्छा, तो जो वो सिस्टम है पर्सनल सर्च वाला, उसको ही अगर एग्जीक्यूट कर दिया जाए जिस तरह हम ऑफिस तक है, तो वो यहाँ पे कर दिया जाए, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इसके लिए चाहिए होगी कि डीजी हैं या फिर, और उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार की, बिकॉज वो कस्टोडियन है उसके। तो उनका है कि मतलब अगर उनको कोई इस तरह का, हमने SCCP के साथ भी ये अपना सारा डेटाबेस शेयर किया था, ठीक है, ट्रेडमार्क का। ट्रेडमार्क हमारी शेयरिंग है SCCP के साथ भी ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन में उनको जरूरत पड़ती है कि इनका जो ट्रेडमार्क किसी और का ना हो, इससे मिलता जुलता तो नहीं, किसी ने कंपनी नेम के तौर पे रजिस्टर मैं करवाया। आपकी बात को इस तरह एंडोर्स करता हूँ कि हमने एक अप्लाई किया एडवांस ऑप्टिक के नाम। एडवांस ऑप्टिक होस्टन अमेरिका में रजिस्टर्ड था, उन्होंने नहीं था कॉन्क्रीट रजिस्ट्रेशन नहीं था, SCCP ने नेम ऑफ अवेलेबिलिटी था। एडवांस के भी रजिस्टर्ड है, एडवांस स्पोर्ट्स नहीं वो ऑप्टिकल। तो वो इस वजह से उनका डेटाबेस हमारे साथ है। ये अच्छी सजेशन है, पॉसिबिलिटी भी इसमें है कि अब हो सकता है ना, कुछ चीजें होती है जो इम्प्लीमेंट हो सकती है, एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। तो मैं भी अपनी ये आपकी मतलब इसके तवज्जुह से बात पहुंचाऊंगी, तो इन राइटिंग आप लोग भी अपना, और नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो ये अच्छा है कि आप हमारे किसी हायर अप टीम को भी इनवाइट कर लें, तो फिर ज्यादा आप स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे उनके साथ कि हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो है। जी जी जरूर, बिल्कुल हम लिखेंगे भी। और इसके अलावा किसी दोस्त का कोई सवाल है तो सर एक क्वेश्चन। जी जी प्लीज। Ishtiaq Rana नाम है कि बेस्ट इंटरनेशनल मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए वंडरफुल इंफॉर्मेटिव सेशन। एक लाइटर नोट में एक क्वेश्चन है कि रेड बुल इज अ वेरी रिनाउंड ब्रांड, रेड बुल power bull, or just by using red, or on the other side bull, can we have our own brand? उसमें देखें, it depends upon the registrar of trademark। अगर तो वो कंफ्यूज कर रहा है ना कि रेड बुल और पावर बुल, और या फिर आपका ये कि आप उसके साथ कोई डिवाइस अटैच कर देते हैं, यू आर अगर तो आप ये है जैसे होता है ना कि आप जो उसका प्रीफिक्स है वो तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी नेम आप वही रख रहे हैं ना, तो उसको अब आपने जिस चीज पे वर्क करना है ना वो ये है कि वो उससे डिस्टिंक्ट हो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नेम से, रेड बुल से, और सिमिलैरिटी ना हो, कंफ्यूजिंगली सिमिलर भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या वर्कआउट करेंगे कि पावर बुल अगर आपकी चॉइस है रखना, तो आप उसके साथ कोई डिवाइस अटैच करेंगे, उसको ऑल टुगेदर इतना डिफरेंट कर देंगे कि एक बंदा यूं आराम से पहचान सके कि रेड बुल इज डिफरेंट और पावर बुल जो है ना ये टोटली डिफरेंट। तो जो चीजें आपको देखने में और फोनेटिकली दोनों में डिफरेंशिएशन देती है वो अच्छा ट्रेडमार्क होता है। तो इट वुड बी रजिस्टर्ड, लेकिन ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल रेड बुल के स्टाइल फॉन्ट में उसी तरह से लिख के पावर बुल को कर दें, तो फिर उनको लगेगा दिस अराइजेस द कंफ्यूजन इन द पब्लिक कि वाकई वो है। और इस तरह से कोर्ट की जजमेंट भी है कि आप फ्री राइड लेना चाहते हैं,
दूसरे की एक एस्टैब्लिश्ड वो है, रेपुटेशन है, तो यू वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट रेपुटेशन। उनकी कंज्यूमर की जो है वो उसको आप रिसीव करना चाहते हैं ना, तो फिर रजिस्ट्रार भी इन्हीं चीजों को देखते हैं। तो उसके लिए ये कि अगर पावरफुल इज योर चॉइस, तो फिर आप उसको बिल्कुल टोटली डिफरेंट कर दें, उसके साथ कोई डिवाइस अटैच कर दें, उसकी ओवरऑल जो लुक है वो चेंज होनी चाहिए। मैं पावरफुल हमने लॉन्च किया था, रिस्पॉन्स टू दैट मार्केट पे आते हैं, लेकिन अब ये देखिए ना, ये इंटेंशन इज बैड ना। और मैं एंडोर्स करूंगा, वो अंकल ने क्वेश्चन किया था, बड़ा अच्छा था कि उनके इंटरनेशनल लॉयर्स इतने क्रेडिबल हैं, इतने पावरफुल हैं कि वो दे वन द केस लाइक दिस। तो आई थिंक कि हमारे चैम्बर को भी यहाँ पे पाकिस्तान में फिल्टर करने पड़ेंगे, सम ऑफ द इंटरनेशनल बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एंड नॉलेजेबल, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी को वाकई लीड कर सकें इस तरह की। अच्छा, ये पावरफुल आपने रजिस्टर करवाने की कोशिश की थी, यू आर जस्ट गोइंग फॉर द मार्केट? We tried at launch that brand and then we went for powerful actually, and I hope you all are familiar with that. अच्छा अच्छा, Powerful जो है, और इसकी सारी डिबेट में within few weeks they won the case. And the reason was कि हमारे पास इस लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं थी, there wasn't any intention for disruptive or to have some overnight success, क्योंकि हमारे जो ओनर थे वो but this is the thing you have to think before मतलब choosing the mark ना। मैं तो इसको बिल्कुल ऐसे कहती हूँ कि it's like your baby। आपका देखिए इसका जो ट्रेडमार्क का नाम है ना, it's like your baby name, तो इसको बड़ा डिस्टिंक्ट और सोच के रखें। तो मैम उसमें थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि अब रेड बुल हम 340 में ले रहे हैं और पावरफुल हमारा 110 में, लेकिन पावरफुल जो है वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा किक करता है कंपनी के लिए, ज्यादा मजा भी देता है, बट स्टिल वी आर लूजिंग मार्केट शेयर। जी प्लीज, आपका सवाल है प्लीज। मैं लेवल लास्ट इंटरनेशनल कंपनी से रजिस्टर्ड हूं मैं चैम्बर में और एक्सपोर्ट कर रहा हूं यूरोप, यूएसए, कनाडा। लेकिन मैं ये क्वेश्चन मेरा भी सेम ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि अगर लेवल लास्ट, यू नो द एवरलास्ट इज द बिगेस्ट ब्रांड इन यूएसए, और अगर मैं लेवल लास्ट पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाता हूं तो उनकी तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। अब देखिए ट्रेडमार्क जो है हमारा जर्नल जो है ना वो ऑनलाइन है। But my level last international, the ever last is in USA, but जो मेरी कंपनी है टेरिटोरियल राइट है ना, मैंने कहा ना टेरिटोरियल राइट है, लेकिन जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो और हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम जो ऑपोजिशन है ना, दैट ऑपोजिशन जो है ना इज फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। उसमें ये नहीं कि यहाँ का, उसमें लिखा है इंटरेस्टेड पार्टी, तो वो अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास ऑपोजिशन फाइल करते हैं। बट अगर हम इधर रजिस्टर करवाते हैं और उधर वो करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कंपनी है, हम इधर पाकिस्तान में अगर करवाते हैं तो आपने जैसे बोला कि वो यूएसए या कनाडा वट उधर वो यूज कर सकते हैं, तो मतलब हम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? मेरा ये भी क्वेश्चन है। नहीं, वो अगर वो मार्क वेल नोन है ना, ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा ना। हाँ, वो रजिस्टर भी है यहाँ पे, और वो उसको खासियत एक और उसके जो पर लगे हैं उसको सुर्खाब के, वो ये कि वो वेल नोन मार्क है। वेल नोन मार्क को लॉ ने कह दिया कि ये नहीं दिया जाएगा। इस तरह से तो रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क को भी कह देंगे कि 7 अप है तो 7 अप कैंडीज अगर हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन के लिए आता है तो रजिस्ट्रार इज बाउंड कि 7 अप तो वेल नोन मार्क है। ठीक है, कोई एक लिस्ट मौजूद नहीं है वेल नोन मार्क की, बट दिस इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट और रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क की वो किस चीज को जो है वो वेल नोन मानते हैं, यानी जो हमारे एरिया जियोग्राफी में जो है ना वो बाउंड्री के अंदर वेल नोन। क्योंकि अभी तक या फिर नेक्स्ट कभी मुझे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्लाइंट से, लेकिन अभी तक आया नहीं है कि मतलब एवर लास्ट है और आप लेवल लास्ट से कंपनी चला रहे हैं, मैं मैसेज भी इशू करता हूँ, बिल ऑफ क्रेडिट भी जा रहे हैं, पोर्टफोलियो बिल भी जा रहे हैं। लेकिन आपने ट्रेडमार्क उसके लिए अप्लाई नहीं किया ना? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ पाकिस्तान में भी मैं रजिस्टर हुआ हूँ, सो पाकिस्तान में आपको हो जाएगा वो रजिस्टर आप देखिए करेंगे, हम अपने डेटाबेस से देखेंगे, अगर उन्होंने हमारे यहाँ पे नहीं लिया हुआ ना, ठीक है, ट्रेडमार्क और वो वेल नोन में भी नहीं आता, तो हम उसको रजिस्टर कर लेंगे। लेकिन स्टिल यू आर जो है ना वो आप जिसको कहते हैं ना खतरे की घंटी आपके सर पे मंडराती रहेगी। जब हम आपका उसको पब्लिश करेंगे और ऑपोजिशन का टाइम पीरियड होगा तो वो लोग इस तरह विजिलेंट है कि वो यहाँ पे ऑपोजिशन फाइल कर देंगे। ठीक है, वो रजिस्ट्रार के पास या ऑपोजिशन फाइल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा केस आपके गोरमे के केस में हुआ। गोरमे कन्फेक्शनरी ये सारे इसको चेन को डील करता है,
लेकिन सम ऑफ और कंट्री के एक एयर सर्विसेज थी, जहाज जिसके अंदर गोरमे की कोई एक चीज जाती थी गोरमे के नाम से। गोरमे के नाम से होता है जैसे शकरगंज, आजकल हम मतलब लोकल ट्रेवल में भी वो शकरगंज की पुड़ी से जब चाय पीते हैं तो वो निकालते हैं, तो वो गोरमे के नाम से वो था। वो मतलब कोई नोन नहीं था, कोई इतना पॉपुलर नहीं था, तो लेकिन वहां से फिर भी लॉयर्स ने ना यहाँ पे उसने कोई किया इनको कि जी आपने ये गोरमे नहीं रखना। इनको बहुत लिटिगेशन भुगतनी पड़ी, बहुत अपोजिशन के केसेस आए, लेकिन फिर यहाँ का गोरमे विन किया। वो इस वजह से विन किया कि वो जो है ना एक तो नोन नहीं था, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में उन्होंने रजिस्टर कराया था, लेकिन क्लास ही टोटली डिफरेंट थी और काउंटर भी डिफरेंट था। दैट वाज अ स्मॉल प्रोडक्ट जो कि एयर सर्विसेज में यूज होती थी, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ का जो गोरमे है उसने ऑपोजिशन के केसेस विन किए। और ये मुझे किसने बताया, उस लॉयर ने बताया, मैडम किरण ने, जो जिन्होंने गोरमे के केसेस यहाँ के जो ओनर है उसके वो उन्होंने कंटेस्ट किए थे। एक और स्लोगन क्या हम रजिस्टर करवा सकते हैं? हाँ, स्लोगन भी रजिस्टर करवा सकते हैं। स्लोगन में कुछ स्पेसिफिक आपको फॉर्म करवाएंगे या सिर्फ वर्ड स्लोगन जो होगा सिर्फ वो करवाएंगे? इसका प्रॉपर अच्छा, वो ये है कि उसके लिए आपको कोई ऑडियो या इस तरह से प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में वैसे किसी ने स्लोगन नहीं करवाया। जैसे नोकिया की साउंड है ना, ये ट्रेडमार्क है। इसके अलावा ट्रेडमार्क ये भी है कि स्मेल, परमानेंट एक स्मेल आती है आपके उससे ना, किसी भी मतलब एक पर्सनल एक रोज पेटल है, उसके अंदर ये चीज मौजूद है कि वो उन्होंने फ्रेग्रेंस ऐड कर दी है, वो रहेगी जब तक वो रहता है ना। तो वो फ्रेग्रेंस उन्होंने, वो पर्टिकुलर है, वो फ्रेग्रेंस भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वो उन्होंने एज ए ट्रेडमार्क, मतलब ट्रेडमार्क एज ए रजिस्टर होता है। इन मार्क्स को हम कहते हैं कि अनकन्वेंशनल मार्क्स हैं, यानी हटके हैं आम मार्क्स जिस कैटेगरी को हम जानते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज ने देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक हमने ना तो किसी साउंड पे दिया है और ना ही हमने जो है इस तरह की साउंड पे दिया है, ना स्मेल पे दिया है, लेकिन ये मार्क्स एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, फिर ट्रेडमार्क के साथ अपना अगर आपको कुछ स्लोगन है नहीं, वो उसको ना हम कहते हैं ना ये वाला होना चाहिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। तो वो साउंड जो है ना वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड तो नहीं है ना। जैसे ये है कि आपने ग्राफिक्स की शक्ल में एक चीज हमें करके दी है कि अच्छा ये है मेरा, तो रिटर्न अगर नहीं वो उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना। और ट्रेडमार्क ऑफिस के पास भी अभी तक वो चीज नहीं है कि आप उसको ले सकें। वो चंद कंट्रीज हैं जो ईपी या फिर यूएस देते हैं हमको। अभी तक हमने इस चीज को नहीं दिया, लेकिन बट दे आर ट्रेडमार्क। मतलब ख्याल है बात करें जैसे नाइकी है तो जस्ट डू इट, नहीं, That's what you're talking about. नहीं, वो स्वैच तो उसका है No, ना, that is possible. वो तो डिवाइस है ना, दैट इज पॉसिबल। मैं That is आपके possible. अगले उसकी बात करी हूँ स्मेल की, Just do कि it. स्मेल भी एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ठीक है। वो तो सोच तो वो तो उसका वो है ना नाइकी का, वो तो मतलब कहना चाहिए दिस इज द डिवाइस विद इट, वो तो उसका पार्ट है। अब लेपर्ड है, लेपर्ड वर्ड मार्क है, उसके साथ वो लेपर्ड बना हुआ, दिस इज उसका पार्ट है। टेक्निकली वो उसको डिवाइस कहते हैं, हाँ, वो उसको शायद technically- उनको समझ नहीं आ सकी, बट हाँ। दैट इज अलाउड, ऑफ कोर्स दैट इज वो उसका अलाउड, पार्ट है, वो अलाउड है। हाँ, वो सेपरेटली आपको करवाने दैट की इज जरूरत पॉसिबल, फॉर श्योर दैट इज पॉसिबल। बात हो रही थी लास्ट जी सिमिलरिटी की, यहाँ पे जैसा गवर्नमेंट की मैडम ने बात की, गोदरेज का एक लफ्ज आया था। गोदरेज उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड का सियालकोट की कंपनी ने करवाना चाहा था, इवन स्पेलिंग चेंज करके उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन थ्रू वर्ल्ड उनका रजिस्टर था। और जैसे आपने बात की कि सीरीज ऑफ उस उन्होंने मुख्तलिफ चीजों में करवाया, वो नहीं था मेरे से, ये बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी आपके आने का, और वी लुक फॉरवर्ड इंशाल्लाह ताला हम इस पे मजीद हम भी काम करते हैं, आप भी होमवर्क करें। हमारा बड़ा अच्छा दोस्तों ने सवाल पूछे और इंशाल्लाह इसको आगे प्रोसीड करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।